चलो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है इनको. रिमेंबर व्हाट आर नॉन प्रॉफिट और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज सॉरी, what are non-profit or non-trading organizations? So these organizations do not work for profit. Okay. अच्छा, उससे पहले ना जरा एक मिनट ऑब्जेक्टिव्स देख लो. मिस्टेक्स है काफी लोगों का कल वाले होमवर्क में. 1 second, please check the solution of the objectives. All of you take the objectives and just check the solutions. इस वाले एंट्री में मेरे को कॉमन मिस्टेक मिला है. क्या दिया हुआ है देखो. Undervaluation of closing stock by 10%. Closing stock was 30,000. Find out the value of closing stock. Undervaluation of closing stock by 10%. मतलब already 10% कम है. तो this closing दिया ये wrong closing stock है. Undervaluation of closing stock by 10% मतलब ये गलत closing stock है. तो ये जो 30,000 है ये 90% है. तो 100 कितना. तो आपका आंसर होना चाहिए 33,333. Actual value of closing stock is 33,333. Got it? Once again, read the question properly. Undervaluation of closing stock by 10%. आपने गलती से closing stock को 10% कम बताया है. सॉरी, और वो कम वैल्यू है 30,000. जो कम वैल्यू है ना वो 90% है. Undervaluation है ना. Remember, undervalued, overvalued, you do it as per 100 का calculation. So that undervalued amount, that 90% amount, that is 30,000. So what is 100%? You just cross multiply. That will be 30,000 into 100 upon 90. And that comes to 33,333. फिर इसका आंसर है depreciation 12.5% at 2,20,000 for 1 year is 27,500. इसका आंसर है 27,500. 10,000 पे 12.5% for 6 months. इसका आंसर है 675. 625, sorry. 625 is the answer. 625. Okay. Got it? Then insurance premium is paid for 1 year ending 1st September 2019 amounting to 1,500. Calculate prepaid insurance assuming 31st March as the year end. So 6 months का prepaid है, देख के पता चल रहा है यहाँ पे 750 is prepaid. That's the answer. Find out gross profit or gross loss. ये सबका right था I think. Purchases, sales, carriage inward, opening stock, purchase return and closing stock. What's the answer of this one? Fourth one, what have you got? What is the answer of this fourth one? Gross profit or gross loss कितना आ रहा है आपको? Check. Fourth one का answer. Calculate. Sir, 9600 profit. 9,600 का GP आ रहा है. ठीक है. This part was correct. Most of you have got it. And borrowed loan from Bank of Maharashtra 2 lakhs on 1st October at the rate of 15%. Calculate interest assuming that the financial year ends on 31st March. So obviously we'll take it for 6 months. We'll take it for 6 months. एक सेकेंड ना, ये इंश्योरेंस में मैंने शायद मिस्टेक किया है. रुको, इंश्योरेंस 750 प्रीपेड नहीं आएगा. इंश्योरेंस में 1 सितंबर है ना. सो सर वो डेज में कैलकुलेशन जाएगा बाद में. डेज में क्यों, मंथ्स में ही कर सकते हो ना सर लेकिन 5 वो months आएगा. 5 months आएगा. 5 months प्रीपेड आएगा. सॉरी, 5 months. 1500 upon 12 into 5. How much that comes to? सर 625. 6. अच्छा, 625 ही आ रहा है क्या? Okay. So prepaid insurance is 625. Prepaid insurance is 625. Okay.
चेक करते जाओ आंसर। पहले वाले का 33333 है, उसके बाद 27500, 625, 625, फिर 9600 और फिर बोरोड अ लोन, उस पर 6% का इंटरेस्ट आएगा बिकॉज यू हैव यूज्ड द लोन मनी फॉर 6 months. So 2 lakh का 15% is 30,000. 30,000 पे 6 महीना 15,000. 15,000 is interest. Okay, 15,000 is interest. Then डिसोल्यूशन में भी था, उसमें भी गड़बड़ मिला मुझे। चेक कर लो एक सेकेंड। और एफ था, Vinod, Vijay, Vishal are sharing partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Vishal becomes insolvent and his capital deficiency is 6,000. Distribute the capital deficiency amongst the solvent partners. So Vishal was the third partner. Sorry. So 1/6 उसका शेयर चला गया. वो 6,000 will be divided between the other two partners in the ratio of 3:2, profit sharing ratio. So 3,600 and 2,400. That's your answer. Okay. That's how you'll share the deficiency. 3:2 में. First वाले का answer. Then you have creditors, bills payable and bank loan. Available bank balance is 40,000. What will be the amount that the creditors will get in case of all partner insolvency? यहाँ पे mistake मिला है मुझे. Some of you have taken bank loan as secured. देखो secured होता है. Practically most of the times bank loan is secured. But in the question, if there is no additional information given about security, कि secured against stock, या charge on stock, या charge on machinery, या charge on furniture, तो सिक्योरिटी का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब एनी लाइबिलिटी इज अनसिक्योर्ड. एनी लाइबिलिटी इज अनसिक्योर्ड. ठीक है. सो ऑल द थ्री लाइबिलिटीज यू नीड टू पे इट ऑफ इन रेशियो. एंड व्हाट विल बी दैट रेशियो? 3:2:1. So 40,000 in the ratio of 3:2:1. So creditors will get 20. अपने को पूछा है creditors को कितना मिलने वाला है, तो they will get 20,000 rupees. Is that clear? Normally bank loan is secured, but if nothing is given in the problem about security, ये theoretical assumption है, security का information नहीं दिया, assume it is unsecured. Okay, all liabilities unsecured in the ratio. Insolvent partners capital account, debit total is 10,000, credit total is 6,000, deficiency is obviously 4,000. Sorry, is that clear? 10 minus 6, 4. Insolvent partner's capital debit side is 15. Insolvent partner bought cash of 6,000. Calculate the amount of insolvency loss to be shared. 15,000 डेबिट साइड पे था, मतलब क्रेडिट में 0 था, और वो 6,000 लाया, तो अभी उसका नेट डेफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा. नेट डेफिशिएंसी इज 9,000 रुपीज. गॉट इट? उतना लॉस है, इंसॉल्वेंसी लॉस है, विल बी शेयर्ड बाय द अदर टू पार्टनर्स इन पीएसआर. And realization profit is 6,000 shared by profit 3:2:1. Distribution पूछा है अपने को, तो 6,000 का 3:1 में हो जाएगा 3,000, 2,000, 1,000. 3:2:1. That's your answer. Okay. तो एक बार चेक कर लो बराबर से आंसर्स. Just check it properly. सर मुझे वो इंश्योरेंस प्रीमियम वाला नहीं समझा, वो 5 months कैसा है? इंश्योरेंस वाज पेड अप टिल फॉर द ईयर एंडेड 1 September दिया है ना अपने को. तो मतलब ईयर स्टार्टिंग 2 September हुआ ना? हाँ, वो 1 September 2 September you take it as one and the same. Doesn't matter, हाँ. 1 day difference. So basically it is September to August का ईयर. तो अपना ईयर तो एंड हो रहा है मार्च में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 months का प्रीपेड हुआ ना. हाँ सर. दैट वे फर्स्ट और सेकंड वो एक दिन, दैट्स ओके. तुम लेते ही हो ना 31 August या 1 September, दैट इज वन एंड द सेम. दैट वे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और फर्स्ट. ओके.
देन कम टू कंप्लीट द फॉलोइंग. डेबिट साइड टोटल ऑफ रियलाइजेशन 20. क्रेडिट का क्या होगा? तो लॉस हो गया 4 का. ऑब्वियसली क्रेडिट कम होगा, इसके लिए लॉस हो गया. तो क्रेडिट साइड टोटल होना चाहिए 16,000. कम होगा तो ही आपका लॉस होगा ना, नहीं तो ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका. क्रेडिटर्स आर 16, बिल्स पेबल आर 12, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी दोनों को मिला दो, दैट इज 28,000. एक्सटर्नल लाइबिलिटी इट इज 28,000. Credit side realization is 21. Debit side total is 16. Profit credit minus debit 5,000. Profit is 5,000. Debit side total of capital is 51. Credit side पता नहीं है. Cash brought in by partner 17,000. फाइनल सेटलमेंट के बारे में पूछ रहे हैं. 17,000 क्यों लाया होगा? क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट में उसका 34 होगा. डेबिट माइनस क्रेडिट डेफिसिट कैपिटल वो घर से लेके आया. ये इंसॉल्वेंसी वाला नहीं है, ये नॉर्मल पार्टनर है, इसके पास बहुत पैसा है, ये घर से पैसा ला रहा है 17,000 रुपए. 34 क्रेडिट का होगा तो डेबिट माइनस क्रेडिट करके 17,000 मिल जाएगा डिफरेंस ऑफ कैपिटल. एंड कैपिटल डेफिशिएंसी पूछा है. कैश ब्रॉट इन बाय इंसॉल्वेंट पार्टनर 7,000 है. इंसॉल्वेंसी लॉस 21 है. इंसॉल्वेंसी लॉस मतलब जो शेयर करते हैं जो सॉल्वेंट पार्टनर, 7,000 लाने के बाद उनको 21 शेयर करना पड़ा. तो उससे पहले उसकी डेफिशिएंसी कितनी थी? 28,000 थी. डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल. 28,000 की कैपिटल डेफिशिएंसी थी जिसमें से 7,000 लाया और बाकी 21,000 शेयर करना पड़ा इंसॉल्वेंसी लॉस. क्लियर है? अभी सबसे कॉमन मिस्टेक मेरे को स्टॉक में मिला, तो मेरा घड़ी घड़ी सबका हाईलाइट करने से अच्छा है वी कैन डिस्कस इट इन क्लास ओनली. स्टॉक वाला पार्ट फाइनल अकाउंट्स में काफी लोगों का रॉन्ग था. 30,000 वाज 90% रॉन्ग वैल्यू. तो करेक्ट वैल्यू क्या है? 30,000 into 100 upon 90, that is 33,333. 33,333 rupees. That's the correct value of stock. मतलब हम लोग उसमें 90 वाला लेंगे. ऑब्वियसली 90 वाला लेंगे. 100 वाला तो हो गया ना यार एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक. तो ढूंढने का क्यों पूछेंगे तुमको? तुमको क्या बोला है? स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 10%. स्टॉक वाज 30,000. तो अंडर वैल्यूड मतलब गलती से 10% कम बताया, मतलब वो सर उन्होंने लिखा है वॉज अंडर वैल्यूएशन, मतलब हम लोग को करना है ना अभी अंडर वैल्यू. नहीं अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूएशन दैट इज पास्ट ओनली. कम बता देना. वैल्यूड ओवर वैल्यूड इज पास्ट ऑलवेज. वो इंग्लिश थोड़ा वियर्ड तरीके से प्रेजेंट किया है. क्या है वो? क्लोजिंग स्टॉक वाज 30, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक. एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू ऑफ करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐसा कुछ देना चाहिए. तो बराबर से फ्रेम नहीं हुआ है वहां पे. कभी भी याद रखना, आपको क्वेश्चन में है ना करेक्ट वैल्यू ही पूछा जाएगा, रॉन्ग वैल्यू कभी पूछेगा नहीं क्वेश्चन में, ये याद रखना. ओके तो क्वेश्चन बोर्ड में भी ऐसा ही इंग्लिश में देते हैं लोग. हाँ, इंग्लिश इज वियर्ड ओनली ओवर देयर. सर वो प्रीमियम वाला समझाओ ना, वो 6 महीना ही आ रहा है. अरे 5 महीना आ रहा है, पर 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ना इंश्योरेंस का साल. तो 1 सितंबर टू 31 अगस्त है ना ईयर ऑफ इंश्योरेंस. पर सर फिर वो लोग ने नीचे लिखा है कि कैलकुलेट प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट द ईयर एंडिंग इज 31 मार्च. 31 मार्च तक ही पे करना था. तूने सितंबर से पॉलिसी स्टार्ट की है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये साल में 7 ही महीने का प्रीमियम पे करना था और कर दिया तुमने अगस्त तक. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने का प्रीपेड हो गया ना. 12 महीने का 1500. 125. 5 महीने का 625 इज प्रीपेड. 125 into 5. Understood? स्टॉक वाला क्लियर है सबको? 90% 30, बाकी 33,333. बोलो. यही अगर दिया होता स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 10%, they would have taken the wrong value to be 110 and that 110 is 30,000. So what is 100 in that situation? So you cross multiply and get the answer. Okay. ओवर वैल्यूड होता तो 110 लेके करने का, अंडर वैल्यूड 90, 80, 70 लेके करने का. चलो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. यस्टरडे वी डिस्कस्ड अ फ्यू एग्जांपल्स. व्हाट इज द मीनिंग? डज एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन?
They work for social welfare. They work for service of their members. Okay, social service, service of the members, promoting art, culture, sports, promoting education, promoting various social issues. तो ये सब काम होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के. प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है. नॉन प्रॉफिट, एज द नेम सजेस्ट, प्रॉफिट मेकिंग इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. अच्छा, मैनेजमेंट कैसा होता है? डेमोक्रेटिक होता है, कैपिटलिस्ट होता है. हाउ इज द मैनेजमेंट, हाउ इज द इलेक्शन ऑफ एन एनपीओ? Democratic. Democratic, okay. Per person one vote, irrespective of the money contributed by the member. इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है? बहुत सी सिंपल सी चीज है. अगर आपको कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे एक नॉन प्रॉफिट क्लब बनाना है. आई वांट टू मेक अ नॉन प्रॉफिट क्लब which is having all the amenities like recreational stuff like कार्ड रूम है, तुम्हारा कैरम बोर्ड खेल सकते हो आके, या कुछ स्क्वॉश खेल सकते हो, टेनिस खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो. ऐसा क्लब बनाने का है मुझे फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. व्हाट विल आई डू? आई विल गिव एन एड, एज आई विल रजिस्टर फॉर एनजीओ एनपीओ विद द ट्रस्ट एक्ट में तो नहीं जाएगा ये, तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या कोऑपरेटिव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव में डाल सकते हो इसको. तो एक रजिस्ट्रेशन करवाओगे इसका एनपीओ के फॉर्म में. इसमें आप सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप नहीं कर सकते. यस, इसमें आप सोल प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकते. एनपीओ अलग ही एक्ट में रजिस्टर होता है, कोई स्पेसिफाइड एक्ट नहीं है उसका. 2-3 एक्ट में से किसी एक के प्रोविजन के आप अंदर आते हो, उसमें आप रजिस्टर करवा सकते हो. तो आप एक एनजीओ रजिस्टर करवाओगे, फिर आप क्या करोगे? मेंबर्स इकट्ठा करोगे. सपोज मेरे एनपीओ में है मिलके 500 मेंबर्स, देयर आर 500 मेंबर्स. 500 मेंबर इकट्ठा हो गए. 500 मेंबर ने बोला हम लोग रेडी है इस एनपीओ के साथ जुड़ने के लिए. मैं बोलूंगा ठीक है, मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरा कोई अलग काम नहीं है, आई एम जस्ट कोऑर्डिनेटिंग विद द पीपल. तो हवा में से तो शुरू नहीं हो जाएगा एनपीओ, पैसे लाने पड़ेंगे. तो मैं बोलूंगा 500 मेंबर को, एक एक जन को 1000 रुपए लेके आओ घर से. आई विल टेल 500 मेंबर्स टू ब्रिंग 1000 रुपीज फ्रॉम देयर होम. तो 5 लाख रुपए जमा हो गए ना. 5 लाख रुपए जमा हो गए, तो ये 5 लाख रुपए बन जाते हैं कैपिटल फंड. दिस 5 लाख रुपीज इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड, एंड एसेट में ये दिख जाएगा कैश 5 लाख. इज दैट क्लियर? ऐसे बनता है आपका एनपीओ. मेंबर के कंट्रीब्यूशन से जमा होके रेडी हो जाता है इसका कैपिटल फंड. याद है कैपिटल फंड के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर. व्हाट इज अ कैपिटल फंड? इट इज नथिंग बट द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द मेंबर्स टुगेदर. ये ओनर्स है, ये मेंबर्स ही इसके ओनर्स हैं. इसको कहा जाता है कैपिटल फंड. इधर 1 2 3 4 5 6 लोग से कैपिटल नहीं आ रहा है. ओके, 100 200 500 1000 लोग से कैपिटल आ रहा है. इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल फंड. बहुत लोगों का पैसा एक साथ, फर्क नहीं पड़ता इंडिविजुअली कौन किसने कितना दिया, डज नॉट मैटर. अच्छा, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा इनके लिए? दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होगा गवर्नमेंट का ग्रांट्स. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है. आपने देखा होगा स्कूल को ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से, कॉलेजेस को ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से. So such organization governments also want to promote so that it is for the benefit of all social class, middle class, lower class of the society. It benefits everyone. तो गवर्नमेंट का ग्रांट सब्सिडी भी मिलते रहता है, ये भी इनका एडिशनल इनकम हो जाता है. बट याद रखना, मेजॉरिटी सोर्स ऑफ मनी फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर्स. मेंबर के कंट्रीब्यूशन से इनका काम चलता है. सिंपल एज दैट. ओके, देन coming to the next part, that is income and expenditure account. ये तो बैलेंस शीट हो गया. प्रॉफिट लॉस, ये लोग इनका मोटो नहीं है प्रॉफिट लॉस. तो प्रॉफिट लॉस ढूंढना तो पड़ेगा. उसको हम प्रॉफिट लॉस नाम नहीं देते हैं, उसको हम सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं. और अकाउंट का नाम हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड इज एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इज इनकम. और एकदम पीएनएल के जैसा रहता है, ट्रेडिंग पीएनएल जैसे आप बनाते हो प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए अक्रूवल सिस्टम पे. सेम वे दे मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और इसका जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट को ये लोग प्रॉफिट या लॉस नहीं कहते हैं, वो रिजल्ट को ये लोग बोलते हैं सरप्लस या डेफिसिट. द रिजल्ट इज कॉल्ड एज सरप्लस या डेफिसिट. इज दैट क्लियर?
सो कीप दैट इन माइंड. इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, इनका होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नंबर 1. प्रॉफिट या लॉस नाम नहीं देते, इसको सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं. नाम सरप्लस या डेफिसिट है. सरप्लस का मतलब इस साल इतना इनकम ज्यादा हुआ, एक्सपेंस कम हुआ. या सर डेफिसिट मतलब एक्सपेंस ज्यादा हुआ, इनकम कम हो गया. एंड बैलेंस शीट इज कॉल्ड बैलेंस शीट. कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फंड. यहां तक हमने डिस्कस किया हुआ था इन द लास्ट लेक्चर. इज दैट क्लियर? Now let's focus on some individual points, important points which distinguish this NPO का accounts than your normal accounts. Okay. पहले तो let us focus on income and expenditure account. Income and expenditure account पे focus करते हैं. What is an income and expenditure account? Income and expenditure account is nothing but a profit and loss account, but for an NPO. Income and expenditure account is nothing but a profit and loss account, but for an NPO. NPO मतलब स्कूल हो गया, हाउसिंग सोसाइटी हो गया, सोशल क्लब हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए. ये लोग P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे. इनके बुक्स में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखेगा. क्या दिखेगा आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखेगा. ठीक है. अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ से स्कूल. स्कूल का मैं एग्जांपल लेता हूं. तो अभी ये एनपीओ में देखो, हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स में हमने सीखा हुआ है. फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी वी हैव डन अ चैप्टर. लास्ट ईयर हमने किया था सोल प्रोप्राइटरीशिप का. करंट ईयर हमने पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स लर्न किया हुआ है. यहाँ पे आपके जो इनकम्स और एक्सपेंसेस थे ना, मोर और लेस सिमिलर थे. आपने देखा होगा हर एक सब में घूम फिर के वही आइटम्स दिख रहे थे. सेल्स वाज द मेजर इनकम. उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड होता था, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवरी एंड ये वगैरह वगैरह इनकम सोर्सेस होते थे. एक्सपेंसेस साइड पे यू हैड परचेजेस, यू हैड वेजेस, यू हैड कैरेज, यू हैड फ्रेट, एंड देन P&L में यू हैड सैलरी, यू हैड कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, बैड डेट्स, you had printing, stationery, postage, telegram, trade expense, royalty sometimes, and you may have office expense, delivery and all. So these were the normal list of incomes and expenses we used to get in a normal trading business, right? But in an NPO, एक NPO कोई भी फील्ड में काम करे, वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, जिम हो सकता है, क्लब हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, आपका टेम्पल हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So depending on that organization, your nature of incomes and expenses differ. Depending on that organization, your natures of incomes and expenses differ. तो थोड़े बहुत आपको इनकम एक्सपेंसेस अलग अलग देखने मिल जाएंगे in case of NPO. So let us take an example of a school. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं स्कूल का. अब आप ही सोचना है आपको लॉजिकली, सब में तो देख के आपको पता चल जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो. स्कूल के लिए सबसे मेजर इनकम सोर्सेज क्या होंगे? एक स्कूल है, उसको हर साल इनकम मतलब जो आप हर साल अर्न करते हो. ठीक है, दिमाग लगाना है सबको. एक स्कूल के लिए मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर अ स्कूल? स्टूडेंट फीस. स्टूडेंट्स फीस. ओके, ये फीस बहुत बहुत टाइप के हो जाते हैं. आपसे बहुत सारे आपने लिस्ट में देखा होगा कॉलेज की. एक स्कूल फीस होता है, एक टर्म फीस होता है, एक बुक्स का फीस होता है, एक लाइब्रेरी फीस होता है, यूनिफॉर्म फीस होता है, प्लेग्राउंड का चार्ज होता है, वगैरह 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 का. तो स्कूल स्टूडेंट से जो भी कलेक्ट कर लेता है, बराबर है, वो सब फीस उसके सोर्सेज हो गए. और क्या सोर्सेज होंगे इनकम? डोनेशन. वेरी गुड. इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशंस या ग्रांट. मैंने अभी अभी बोला कोई वॉलंटरी डोनेट. आपने स्कूल में देखा पट्टी पे नाम लिखा रहता है, 500, 1000, 500, 1000, 100, 200, 500 लोगों का नाम लिखा रहता है. स्पेशली अपने गुजराती स्कूल में तो हर एक में लिखा ही रहता है. ओके, तो ये सब डोनर्स का नाम रहता है वेरेवर यू गो इन द संस्था एंड ऑल. तो ये डोनेशंस इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो डोनेशन भी है, ग्रांट भी आ जाता है गवर्नमेंट से, ग्रांट सब्सिडी आ जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ? सर मतलब कोई जगह रहेगा वो भाड़े पे दिया रहेगा. जगह दिया है. स्कूल वाले अपने हॉल को, आपने देखा होगा कभी संडे वनडे शादी के लिए दे देते हैं, तो हॉल रेंट. हॉल रेंट इज अ टाइप ऑफ इनकम फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? और रद्दी सॉरी, रद्दी हाँ, सेल ऑफ स्क्रैप. सेल ऑफ स्क्रैप, बुक्स का रद्दी. परफेक्ट. स्कूल के लिए एप्ट बैठता है ये. सेल ऑफ स्क्रैप, सन्ड्री इनकम, राइट? एंसिलरी इनकम फॉर अ स्कूल.
बराबर। तो ये मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए। फिर कुछ अगर एक्स्ट्रा पैसे आ गए, एफडी में रखा है तो ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अच्छा, इन ऑर्गेनाइजेशन को शेयर्स में इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं होता है। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स। दे स्पेयर मनी जो होता है इनका, दे आर debarred from investing in risky securities. So they are supposed to keep their money only in FDs or government bonds or treasury bills। यही अमाउंट, यही चीजों में रख सकते हैं जहां पे पैसा सेफ हो और एक फिक्स इंटरेस्ट आ जाए। इनका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है ना, सट्टा करना है नहीं इनका। इनका मोटो है पैसे को सेफ रखना। तो अगर इनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता भी है तो ये लोग कहीं रिस्की चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये लोग खाली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स इसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट हो जाती है इनकी एक एडिशनल इनकम अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो। अब आते हैं खर्चों पे। व्हाट आर द मेजर एक्सपेंसेस फॉर अ स्कूल? डे टू डे Teacher's salary. very good salaries of staff, of teachers, of principal, okay, peons वगैरह सब, इलेक्ट्रिसिटी बिल, electricity bill, maintenance, maintenance और स्टेशनरी, स्टेशनरी। एप्ट एग्जाम्पल, बहुत खर्चा हो जाता है स्टेशनरी पे, मेजर एक्सपेंस वही होता है। और तो बस का खर्चा रहता है आने जाने का। ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, वेरी गुड, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस हो जाता है। सो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ expenses। These are the major areas where the school incurs the expenses, right? Coming to the balance sheet, अभी ये इनकम एक्सपेंडिचर से आपको सरप्लस डेफिसिट जैसे प्रॉफिट लॉस मिलता है, एड अप टू द कैपिटल फंड। तो लायबिलिटी एंड एसेट पे आ जाते हैं, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, एक स्कूल के बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। सबसे पहला तो कैपिटल फंड होगा। कैपिटल फंड जमा कैसे हुआ होगा? फ्रॉम द डोनर्स एंड द स्कूल्स की पहले की जो फीस आई होगी या सरप्लस पहले का जो इकट्ठा करके जमा हुआ होगा, ये कैपिटल फंड होगा। इसमें आप करंट ईयर का सरप्लस ऐड कर दोगे। जैसे आप कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर देते हो वैसे आप यहाँ पे कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड कर दोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट ऑल अदर लायबिलिटीज और एसेट्स द स्कूल में हैव? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, बिगेस्ट एसेट लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा स्कूल के लिए? खर्चा, एक्सपेंस हो जाएगा। फर्नीचर होगा, बेंचेस होंगे स्कूल में, बराबर है। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स होगी, ये उसके एसेट हो जाएंगे। और प्रीमाइसेस, दैट इज प्लेग्राउंड, वो लैंड एंड बिल्डिंग में आ गया। प्लेग्राउंड हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, सम स्कूल, इन्वेस्टमेंट हो गया। और किसी ने क्या बोला? बैंक, कैश बैंक, बराबर है। So these are the assets for a school. Agree all of you? Sir, investment will be a risky investment, no? Not a risky investment. तो कैसा टाइप का बोला तो सही अभी। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स। They are not allowed to invest in shares. They have to make investments in only safe horizons where they can earn fixed rate of interest over the long period, or if at all they want to keep it for long, but the investment should be very much safe without any volatile fluctuation, price fluctuation ज्यादा नहीं होना चाहिए। पैसा डुबाना नहीं है, पैसा कांस्टेंट संभाल के रखना है। सेफ्टी ऑफ मनी इज द गोल, रिटर्न्स आर नॉट द गोल फॉर देम, ठीक है। और क्या हो सकता है लायबिलिटी साइड पे इनका? गवर्नमेंट लोन अगर लेते हैं तो, सपोज किसी ने लोन उठाया है तो लोन हो गया इनका लायबिलिटी साइड। और क्रेडिटर डेटर आएंगे क्या यहाँ पे? नो, नहीं। बहुत रेयरली अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो कहीं जाके क्रेडिटेड, अदरवाइज देयर बिजनेस इज नॉट। रिमेंबर देयर बिजनेस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स। तो इनका कुछ क्रेडिटर डेटर वगैरह दिखने वाला नहीं है। सर एसेट में जो स्टूडेंट्स की फीस बाकी है वो आ सकता है? हाँ, एसेट में रिसीवेबल, फीस रिसीवेबल बोलते हैं उसको। इनकम रिसीवेबल हो गया, वो उसका एसेट हो गया। वैसे ही कोई क्लर्क, प्यून, टीचर की सैलरी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई बच्चे फीस एडवांस में भी दे देते हैं तो फीस रिसीव्ड इन एडवांस उनकी लायबिलिटी हो जाएगी। वैसे ही कोई एक्सपेंस ये लोग एडवांस में पे कर सकते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस इनका एसेट हो जाएगा। So this is the major area where they will have their liabilities and their assets. सर ये लोग कोई फंड तैयार करके नहीं लगता है? Yes, फंड्स भी आएगा, फंड्स भी हम लोग लर्न करेंगे। फंड्स में अभी इसमें नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, मैं जनरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लूंगा।
ये तो हम लोग कोर एक्टिविटीज देख रहे हैं फिलहाल। सर इसमें प्रोविडेंट फंड रहेगा? हाँ, प्रोविडेंट फंड भी आता है फाइनल अकाउंट में। एक फंड तुमने सीखा हुआ है, यस, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और सामने प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो पैसा आपने इन्वेस्ट करके रखा है। जब ये एम्प्लॉय बुढ़ा रिटायर हो जाएगा तब इसमें से इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आएगा ये फंड में आप चुका दोगे एम्प्लॉयज को इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। करेक्ट सर रिजर्व्स रहता है? रिजर्व्स रहता है, यस, कंपल्सरी 25% कुछ लिमिट है इनका। दे हैव टू ट्रांसफर दैट मच टू रिजर्व्स एवरी ईयर, जमा करके रखना पड़ता है इनको। रिजर्व्स भी होता है, ओके, बट 25% से 25 या 15% एग्जैक्टली कोऑपरेटिव्स के केस में, वो भी 15% 15 या 25% एग्जैक्टली, आई डोंट नो, 15 या 25% जितना अमाउंट दे हैव टू कीप इट इन रिजर्व मैक्सिमम, से ज्यादा नहीं, और बाकी यूज कर लेने का मैक्सिमम उतना ही कर सकते हैं। और डिविडेंड्स ये लोग नहीं दे सकते हैं, डिविडेंड्स दे कैन नॉट गिव, बिकॉज जो भी पैसा आता है मेजॉरिटी पैसा इनको वापस री यूज करना पड़ता है अपने मेंबर के सर्विस के लिए। तो कंपनीज के जैसा रिजर्व 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 बड़ा बड़ा सकते हैं, मैक्सिमम 15% या 25% है इनका लिमिट, उतना ही ये लोग ट्रांसफर करें, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो रिजर्व होंगे बट नॉट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वेरी रेयरली यू विल फाइंड रिजर्व, क्योंकि इनका गोल जमा करना नहीं है पैसा, इनका गोल है यूटिलाइज कर देना, फटाफट फटाफट जो भी आए सर्विस इसमें डाल देना मेंबर के बेनिफिट के लिए। ऐसा है, कभी बच गया पैसा यूज नहीं करना है तो फिर रिजर्व में रख के फिर इन्वेस्ट कर सकते हो आप। ओके सर पेंशन रहता है? यही हो गया ना, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड इज सिमिलर ओनली, सेविंग्स ऑफ दैट एम्प्लॉय। वो तुमने एम्प्लॉय पेंशन फंड में वो सेव करता है, प्रोविडेंट फंड में तुम्हारी सैलरी तुम काट के वहां पे सेव करवा देते हो, वो जो फ्यूचर सैलरी उसको देनी है वो प्रोविडेंट फंड में रख दिया है तुमने, अरे जब रिटायर होगा तब उसको दे दोगे। तो ये जो नॉर्मल बिजनेस के एसेट लायबिलिटी होते हैं और जो नॉन ट्रेडिंग के एक्सपेंस इनकम एसेट लायबिलिटी होते हैं थोड़े से अलग हो जाते हैं, आपको लॉजिकली दिमाग लगा के सोचना पड़ता है वहां पे, ठीक है। प्रॉब्लम्स में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास लिस्ट डेटा सब दिया होगा, ये क्योंकि प्रैक्टिकली आपको काम आएगा, काफी अच्छा चैप्टर है, तो अगर सोच सकते हो तो वेल एंड गुड फॉर एनी एनपीओ, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इट विल बी यूजफुल अहेड इन द फ्यूचर। सम के साथ भी लॉजिक के साथ सोच सोच के करना, बहुत मजा आएगा चैप्टर करने में। देन coming back to another type of NPO, coming back which they ask you majority of the problems में, okay? अभी ऐसे टाइप के एनपीओ पहले बहुत होते थे, अभी बहुत कम हो गए हैं। तो ये टाइप के एनपीओ कौन से होते हैं? योर क्लब्स और जिम खानास और यू कैन से ये सोशल कल्चरल क्लब और जिम खाना इनको बोला जाता है। तो ये सोशल मोटिव वाले ऐसे क्लब और जिम खाना अभी काफी कम दिखते होंगे आपको। ये सब एकर्स क्लब और जो आपको दिख रहा है ये सब एनपीओ नहीं, प्राइवेट क्लब्स, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स ओनली, दे आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। तो इनको आप इनके साथ मिक्सअप मत कर देना। ये जो यही मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे क्लब और जिम खाना, आपके कॉलेज में जो क्लब आपको दिखता है, जिम खाना दिखता है, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा आपके एरिया में कभी गार्डन में होता है, कभी कोई संस्था में होता है जहाँ पे लोग ऐसे एक्सरसाइज करते होते हैं जिम वगैरह के जैसे, या कोई भी आके पब्लिकली यूज कर सकता है वो चीजें। ऐसा कोई क्लब होता है जहाँ पे कैरम खेलने बैठ जाते हैं लोग। तो ऐसे कोई क्लब्स अभी बहुत कम हो गए नंबर में। दीज क्लब्स आर एनपीओज, दे डू नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट, दे वर्क फॉर सर्विस, बट इनकी नंबर में अभी क्वांटिटी काफी कम हो गई है, ओके। बट आपको प्रॉब्लम्स मेजॉरिटी ये क्लब्स और जिम खाना के बेसिस पर ही आते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन दीज टाइप्स ऑफ क्लब्स और जिम खानास and what are their major sources of incomes and expenses and their assets and liabilities, okay? तो ये क्लब्स और जिम खानास के एक्सपेंस इनकम क्या होते हैं और एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है, इन पे थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम्स फॉर such types of clubs, membership fee, membership fee, okay?
अब ये मेंबरशिप फी अलग अलग टाइप्स में मिल सकती है। इनको कहा जाता है, एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी ये मैं क्लब या जिम खाना का एग्जांपल ले रहा हूं। आपको पता है अभी क्लब और जिम खाना में एक्टिविटीज क्या होती हैं? देयर आर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ओके, ये एजुकेशन का नहीं होता है, ये लाइब्रेरी नहीं होता, ये कॉलेज नहीं होता, ये टेम्पल नहीं होता। ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपका फ्री टाइम स्पेयर करने का जो एक्टिविटी है, कैरम रूम होता है, आपका कार्ड रूम होता है, आपका टेबल टेनिस के लिए कुछ होता है, बैडमिंटन कोर्ट होता है, क्रिकेट की एक्टिविटीज होती हैं। ओके, कभी तो दीज टाइप्स ऑफ क्लब्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए जो फॉर्म होता है उन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अभी इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यस ध्रुव, यू हैव डाउट? Now their major source of incomes are from members. Okay, so it's called life membership fees, या फिर एंट्रेंस फीस होता है। ये सब इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। या फिर डोनेशंस होता है, या फिर लेगेसीज होता है, या फिर सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर होता है, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट होता है। तो ये इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है फॉर अ क्लब और अ जिम खाना। तो व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप? नाउ लेट अस टेक देम इंडिविजुअली, इजी है सब, मीनिंग पर ही पता चल जाता है। व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी? लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है, ये ऐसी फीस है जो ये क्लब या जिम खाना में जो मेंबर एडमिट हो रहा है वो पूरे लाइफ की एक साथ भर देता है, पूरे लाइफ की फीस एक साथ दे देता है। लाइफ मेंबर बनने के लिए एक लमसम अमाउंट ऑफ फीस साथ में दे देता है। ठीक है, तो अब जरा सोच के बताना, क्या ये फीस हर साल मिलेगी कि वंस इन अ वाइल मिलेगी? Once in a while. इन अ वाइल, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। जब मेंबर एंट्री करता है तब उसका अगर लाइफ का मेंबर होना है तो एक साथ लमसम फीस भर के दे देता है। तो वंस इन अ वाइल है। अभी ये वंस इन अ वाइल और रिकरिंग का अलग से याद रखना है आपको, आगे मैं बताऊंगा क्यों। तो ये वंस इन अ वाइल है, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे कैपिटल रिसीट। अब ये कैपिटल रिसीट क्या होता है? वी विल रिवाइज वंस अगेन। एंट्रेंस फीस, व्हाट इज एंट्रेंस फीस? एंट्रेंस फीस भी सिमिलर होता है मेंबर के एंट्री पर। जब मेंबर एंटर करता है तब वो वन टाइम पे करता है, उसको घड़ी घड़ी उसको पे करने की जरूरत नहीं है। तो एंट्रेंस फीस भी घड़ी घड़ी आएगी कि ओकेजनली आएगी, रेयरली आएगी? व्हाट डू यू थिंक? Rarely आएगी। वन टाइम ऑन द एंट्री दैट मेंबर इज सपोज्ड टू पे। सो आई विल जस्ट राइट हियर कैपिटल रिसीट। Donations, such clubs or gymkhanas or such types of societies, they get it on regular basis. हर साल इनको कोई ना कोई मेंबर से, गवर्नमेंट से, थर्ड पार्टी से, बाहर वालों से, दूसरे सोसाइटीज से डोनेशन आते ही रहते हैं। ये डोनेशंस जो है इनका रेगुलर रिकरिंग टाइप ऑफ इनकम है, ये मिलते ही रहता है इनको। ओके, कभी कभार ऐसा कुछ होगा कि कोई 2-3 साल 4 साल में एक ही बार डोनेशन मिला है। जनरली डोनेशन पे ही इनका काम मेजॉरिटी चलते रहता है। तो डोनेशन ये क्या हो सकता है? वन टाइम होगा, नॉन रिकरिंग होगा, कि इट्स अ रिकरिंग टाइप ऑफ रिसीट? Recurring. Recurring. So I'm writing your revenue receipt. Okay, there are specified donation also non-recurring, we'll focus on them. Generally they are recurring. Then legacies. What are legacies? Legacy, as the name is legacy. Legacy मतलब क्या है? तुम्हारा आउट ऑफ लीनिएज चल रहा है वो। लेगेसी का मतलब होता है कि कोई मेंबर था जिम खाना या क्लब का, वो मर गया है, ओके, और उसको मरने से पहले उसकी विल के हिसाब से उसने डिसाइड किया था कि मैं इस क्लब या जिम खाना को 1 लाख रुपए डोनेट करके जाऊंगा। तो लेगेसी मतलब वो जिंदा नहीं है, मर चुका है, मरने के बाद उसके नाम पे डोनेशन आया है। आपने देखा होगा कभी बोर्ड्स पे लिखा होता है लेट सो एंड सो, लेट सो एंड सो, लेट सो एंड सो, उनके नाम पे डोनेशन आया रहता है पट्टी पे। सो ये जो
डोनेशन आते हैं, इनको कहा जाता है लेगेसी. दीज आर कॉल्ड एज लेगेसीज. ठीक है. तो लेगेसीज मतलब डोनेशन और कंट्रीब्यूशन गिवन आउट ऑफ द विल ऑफ दैट मेंबर टू द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ थिंक, will this be a recurring receipt हर साल वाला की an occasional receipt, rare receipt? Occasional. Obviously occasional, रोज रोज तो कोई मरने वाला नहीं है. So capital receipt हो गया, right? Then subscription from members. Now what are subscriptions? देखो, member एक बार तुम बन गए किसी क्लब या जिम खाना के, तुमने एंट्रेंस फी भर दी वन टाइम वाली, तुमने सपोज लाइफ मेंबरशिप बनना है तो लाइफ मेंबरशिप फीस भी भर दी. अब ये भर के तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता है. कहीं पर भी जाओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आपको वो वन टाइम खर्चा तो देना पड़ता है, उसके साथ आपको हर साल वाला एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फी डिसाइडेड होती है, वो भी आपको भरनी पड़ती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल ले लो, तो स्कूल में आपको जब एंट्री लेते हो आप स्कूल में, तब एक एडमिशन फीस होती है स्कूल की, वो आपको भरनी पड़ती है. बट उसके बाद भी हर साल आपको क्लास फीस पड़ रही है, ट्यूशन फीस भरनी पड़ रही है. तो ये मीटर तो चालू ही रहता है. किसी भी, आप घर भी ले लेते हो, घर के पैसे देने के बाद मेंटेनेंस के लिए भरना पड़ता है ना आपको हर साल. तो वैसे ही वो क्लब को चलाने के लिए, रेगुलर खर्चे निकालने के लिए, क्लब ऑलवेज चार्जेस सम मिनिमम फी फ्रॉम द मेंबर्स एवरी ईयर, which the members are supposed to pay every year. That is for the maintenance, regular खर्चास of that club. जो शुरू में फीस भरी थी उसका क्या? उन फीस के पैसों से वो एसेट खरीद लेगा, उन फीस के पैसों से वो एसेट बना लेगा, अपने जमीन लेगा, बिल्डिंग लेगा, वो मेजर खर्चा चाहिए ना उसको, तो उन फीस के पैसों से वो एसेट बना लेगा अपने, जो आपने वन टाइम पे किया है. जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस थी, जैसे लेगेसीज थी, जैसे आपके स्पेसिफाइड डोनेशन, यहाँ पे तो जनरल डोनेशन देखा हमने, पर्टिकुलर डोनेशन थे, एक वन टाइम ओकेजनल रिसीट है जो घड़ी घड़ी नहीं आने वाली, उससे वो अपने एसेट खरीद लेगा. और जो हर साल आने वाले फीस हैं उसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन, उसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्रिप्शन, वंशी? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एवरी ईयर दैट मेंबर इज सपोज टू पे सम मनी टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. इज दैट क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बताओ, लॉन्ग टर्म ओकेजनल रिसीट होगी कि शॉर्ट टर्म एवरी ईयर रिकरिंग रिसीट होगी? Recurring. रिकरिंग रिसीट होगी, तो ये रेवेन्यू रिसीट में चला जाता है. और गवर्नमेंट ग्रांट इज लाइक योर डोनेशन. जैसे मैंने आपको बोला, डोनेशन आपको हर साल मिलने वाले हैं, वैसे गवर्नमेंट ग्रांट भी आपको हर साल मिलने वाला है. सच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव ग्रांट्स आल्सो ऑन रेगुलर बेसिस from the government. Government wants to support such organizations, so they will receive grant on regular basis from the government, donations from third party, donations from government. So ये government grant भी occasional receipt नहीं है, ये revenue receipt है, recurring receipt है. ठीक है, recurring receipt. अभी पहले तो फटाफट समराइज कर लेते हैं. लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब समझ आया सबको? बताओ. Anyone who did not understand life membership fees, क्या होता है? पूरे लाइफ का फीस एक साथ आ गया, सिंपल एज दैट. ठीक है, नॉन रिकरिंग होगा, घड़ी घड़ी नहीं आने वाला है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में. ठीक है, एंट्रेंस फीस सोच के बताना, घड़ी घड़ी आएगा कि ओकेजनली आएगा? एक ही बार है. ओकेजनली, एक ही बार आएगा मोस्टली, रेयरली आएगा क्योंकि एंट्री पे भरना है. नेम सजेस्ट. डोनेशंस और ग्रांट, डोनेशन और ग्रांट ओकेजनली आएंगे कि घड़ी घड़ी आएंगे? घड़ी घड़ी आ जाएंगे, रेकरिंग है. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन और ग्रांट रेकरिंग है, बराबर है. गवर्नमेंट देते ही रहता है, थर्ड पार्टी देते ही रहते हैं. लेगेसीज ओकेजनली आएगा, घड़ी घड़ी आएगा? Occasionally. ओकेजनली. लेगेसीज क्या होता है, मीनिंग समझा? It is nothing but donation given out of will of a member or contribution to the organization out of will of a member. बराबर है? That is donation. That is legacy. And subscriptions. Subscription very very important income for the organization. घड़ी घड़ी आएगा कि occasionally आएगा? Recurring. Recurring. घड़ी घड़ी आएगा क्योंकि ये तो मेंबर से हम लोग वसूलने वाले हैं हर साल to meet our day-to-day expenses of the organization. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब ये मैंने रेकरिंग और नॉन रेकरिंग पे इतना जोर क्यों डाला?
और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का फर्क क्या है? क्या आपको याद है कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का फर्क? सर कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म और रेवेन्यू मतलब हर साल हम लोग जो करते हैं। हाँ, याद है हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीखा था 11th स्टैंडर्ड में. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? बेसिकली एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वाला, एक साल में खत्म ना होने वाला. दैट्स ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पीएनएल में दिखने वाला, एक साल का खर्चा. Similarly, you have capital receipt and revenue receipt. Capital receipt मतलब लॉन्ग टर्म वाली इनकम, घड़ी घड़ी ना आने वाली, लंबा बेनिफिट देने वाली. और शॉर्ट टर्म वाली रिसीट को कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट. ओके, रेवेन्यू रिसीट जो हर साल आती है. अब ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डिस्टिंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम में आप दो चीजें बनाओगे. एक्चुअल प्रॉब्लम में आप दो आइटम्स बनाने वाले हो. नंबर 1 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नंबर 2 बैलेंस शीट. तो मुझे जरा सोच के बताना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाओगे? लॉन्ग टर्म इनकम, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस दिखाओगे कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंस दिखाओगे? शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म दिखाओगे क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखो लाइक योर ट्रेडिंग पीएनएल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, हर साल के एंड में बनेगा. तो शॉर्ट टर्म इनकम एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंस विल बी अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. डिड यू ऑल गेट इट? जो स्मॉल, जैसे हम लोग नॉर्मल फाइनल अकाउंट में सेल्स इनकम, सेल्स, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, एक्सपेंसेस में परचेजेस, सैलरीज, वेजेस, एक साल के इनकम एक साल के एक्सपेंस ट्रेडिंग पीएनएल में दिखते थे. सिमिलरली एक साल का इनकम एक साल का एक्सपेंस यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखेगा, क्योंकि ये हर साल मीटर चालू है, तो हर साल का सरप्लस डेफिसिट कंपेयर करने में काम आएगा. ओके, मैचिंग कंसेप्ट, कंपैरिजन, सब जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है सेम यहाँ पे फॉलो हो जाते हैं. अब मुझे बताओ लॉन्ग टर्म रिसीट और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर वो कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग? लॉन्ग टर्म रिसीट एंड लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, दैट इज Balance sheet. दैट इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. जैसे कि पार्टनर का कैपिटल हो जाता था, याद है पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर कैपिटल लायबिलिटी और उससे खरीदे हुए एसेट एसेट साइड पे, वो लायबिलिटी और एसेट क्या थे? लॉन्ग टर्म रिसीट, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर. फ्यूचर में बेनिफिट मिलना बाकी है या फ्यूचर में बेनिफिट देना बाकी है. इज दैट क्लियर? तो ये डिस्टिंक्शन बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन एनपीओ स्पेशली. ओके, क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सभी इनकम रिकरिंग नहीं है, आपके सभी इनकम हर साल आने वाले ऐसे इनकम नहीं है. कुछ कुछ इनकम आपको हर साल आते हैं, कुछ कुछ इनकम आपको ओकेजनली आते हैं. तो जो इनकम आपको हर साल आते हैं, जो इनकम आपको हर साल आते हैं, जैसे कि डोनेशन हो गया हर साल आ रहा है, सब्सक्रिप्शन हो गया हर साल आ रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया ये भी हर साल आ रहा है. इसके बाजू में देखो मैंने लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीट. तो इनको आप कहां दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे कि बैलेंस शीट में दिखाओगे? इनकम एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन द इनकम साइड. आर यू ऑल विथ मी ओवर हियर? कौन सी तीन चीजें मैंने बताई आपको? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट्स. देखो प्रैक्टिकली है ना झंझट नहीं होता है, प्रैक्टिकली चीजें बहुत सिंपल हो जाती है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कोई इनकम हर साल आ रही है तो उसको इनकम में डालो, कोई ओकेजनली आ रही है, रेयरली आ रही है या नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो उसको लायबिलिटी में डाल लो, बैलेंस शीट में दिखा दो, क्योंकि वो एसेट वैसेट खरीदने में काम आएगी. वन टाइम का इनकम है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला इनकम है. यस और नो? लॉजिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही सोचेगा ना, लमसम में आ रही है तो उसको एसेट खरीदने में वापर दो, हर साल आ रही है तो उसको खर्चे में वापर दो, है कि नहीं? आप सोसाइटी में रहते हो, हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, आपसे मेंटेनेंस कलेक्ट करती है सोसाइटी, राइट? सबके घर पे मेंटेनेंस का बिल आता होगा, बराबर है? भिड़े भी बेचता है जेठालाल को मेंटेनेंस का चेक, तो हर महीने उसको मेंटेनेंस भरना पड़ता है. तो वो मेंटेनेंस का पैसा आपको हर साल के एक्सपेंस में यूज करना है, बराबर है? बट कभी अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपके बिल्डिंग में कभी रेनोवेशन होता है, कभी कलर पेंटिंग होता है, क्या कभी कोई बड़ा रिपेयर काम होता है, पिलर का काम होता है, टैंक का काम होता है, तो एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन मांगा जाता है हर एक मेंबर से. मे बी 20,000, 30,000, 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा मांगा जाता है. वो होता है आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसीट,
स्पेसिफिक टाइप ऑफ डोनेशन कहा जाता है या स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंड कहा जाता है, वो घड़ी घड़ी नहीं आता है, वो 10 साल में, 6 साल में, 7 साल में एक बार आपसे मांगेंगे सोसाइटी वाले। तो उन पैसों का यूज आप उसी चीज के करो। सपोज आपने रेनोवेशन के लिए वो पैसा लिया तो रेनोवेशन के लिए वो यूज करोगे। आपने स्विमिंग पूल बनाने के लिए वो पैसा लिया है, स्विमिंग पूल बनाने के लिए यूज करोगे। आपने ऊपर का रूफिंग के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए लिया है, उसी के लिए आप वो पैसा यूज करोगे। और वो हर महीने चार्ज नहीं होने वाला, वो पैसा आपको हर महीने चार्ज नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटल रिसीट एंड अ रेवेन्यू रिसीट? तो ये जो रेवेन्यू रिसीट है ये हर महीने आपसे कलेक्ट करने वाले हैं। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जो हर महीने हमें रिसीट मिल रही है दैट्स अ रेवेन्यू रिसीट। आर यू ऑल गेटिंग दैट? जो हर महीने ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर से पैसा आ रहा है हर महीने, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो प्रैक्टिकली बहुत सिंपल है, हर महीने आ रहा है रेवेन्यू रिसीट। ओके, इनकम में डाल दो, इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो, सरप्लस डेफिसिट कैलकुलेट करने में काम आ जाएगा। लेकिन जो लमसम आ रही है, वन टाइम आ रही है, घड़ी घड़ी नहीं आने वाली, उसको आप इनकम में मत दिखाओ, उसको आप कहां दिखाओ? लायबिलिटी में दिखाओ। वो रिसीट लायबिलिटी में दिखेगी और उसका खर्चा एसेट में दिखेगा। उसका खर्चा वन टाइम एसेट में आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। इज दैट क्लियर? तो लॉन्ग टर्म रिसीट, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस अंडर लायबिलिटी एंड एसेट। इज दिस क्लियर? शॉर्ट टर्म रिसीट, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ही आपका ये ऐसा क्यों करते हैं, शॉर्ट टर्म वाला यहाँ पे क्यों, यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला डाल दे तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि एक साल में आपका भयंकर सरप्लस डेफिसिट आ जाएगा, दूसरे साल भयंकर सरप्लस डेफिसिट कुछ ऑपोजिट ही आ जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन बराबर काम कर रहा है कि नहीं, कंपेयर नहीं कर पाओगे आप, अपने सरप्लस डेफिसिट को कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कंपेरिजन करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म रिसीट और शॉर्ट टर्म एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना और दिखाना ही है। इज दैट क्लियर? तो ये अभी ये थियोरेटिकल पार्ट है, थियोरेटिकल पार्ट के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली होता तो झंझट ही नहीं है, हर साल आ रही है या ओकेजनली आ रही है, पता है आपको। थियोरी के लिए ये 3 इनकम्स कहां डालेंगे आप बताइए? द डोनेशंस, द सब्सक्रिप्शन एंड द गवर्नमेंट ग्रांट्स, वेयर आर वी सपोज्ड टू पुट? इनकम। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है, चुपचाप इसको इनकम में डाल के आ जाने का। बट लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस एंड लेगेसीज, ये क्या हर साल आने वाली है? आर दे गोइंग टू बी रिसीव्ड एवरी ईयर? नो। सो यू डोंट पुट देम अंडर इनकम, क्योंकि एक बार डालोगे भयंकर सा फ्लक्चुएशन हो जाएगा आपके सरप्लस डेफिसिट में, जो नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन विल बी हॉल्टेड। तो इसके लिए आप डाल देते हो उसको लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म लंप सम पैसा आ रहा है वन टाइम, उसको इस्तेमाल करोगे एसेट वैसेट खरीदने या बनाने में। इज दैट क्लियर? तो लंपसम वाले आइटम्स को, इन 3 आइटम्स को कहां दिखाओगे आप? लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस और लेगेसीज, इनको कहां दिखाओगे आप? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो वो पैसा आपका एसेट इस्तेमाल, एसेट खरीद में, जैसे आपका ओनर का कैपिटल होता था, पार्टनर का कैपिटल होता था, याद है लायबिलिटी में, उसका पैसा हम लोग एसेट के लिए यूज करते थे। सिमिलरली ओवर हियर, ओके, लॉन्ग टर्म रिसीट है, ये मेंबर का ही पैसा है लॉन्ग टर्म वाला, सो इट विल गो इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, सर कैपिटल फंड में जाएगा। यस सर, कभी तो मेंबर ने समझो लोन दिया रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, लोन तो अलग ही है ना, लोन तो वो इसमें नहीं आएगा। लोन कैपिटल फंड में नहीं आएगा, लोन तो थर्ड पार्टी है, उसको चुकाना पड़ेगा वापस अपने। ये तो कैपिटल फंड कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया फिर वापस नहीं मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन बंद होगा तभी मिलेगा। हाँ सर, बैंक लोनर हो रहे थे तो वो कैपिटल फंड में नहीं आएगा। नहीं, लोन इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, ये इंटरनल है, कैपिटल फंड में आ जाएगा, वो थर्ड पार्टी है, बैंक लोन अलग। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? इनकम्स का क्राइटेरिया समझ में आ गया सबको? नाउ एक्सपेंडिचर, अभी क्लब और जिम खाना के एक्सपेंडिचर क्या होंगे आप बता सकते हो? क्या क्या जगह पे वो खर्चा करेगा? इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट तो एसेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हो गया, सैलरी, सैलरी हो गया स्टाफ का, और रिपेयर रिन्यूअल,
रिपेयर एंड रिन्यूअल हो गया, यहाँ पे काफी होने वाला है रिपेयर रिन्यूअल क्योंकि एसेट्स काफी सारे हैं, और डेप्रीसिएशन हो गया, ओके एसेट है उस पर डेप्रीसिएशन भी लगेगा. So these are the major sources of expense. Major sources of incomes we know they are subscription, grant, donations, okay. बाकी अपना एसेट और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कैपिटल फंड. ये कैपिटल फंड कैसे बनेगा? जो लॉन्ग टर्म पैसा आता है ना, लॉन्ग टर्म, अभी अभी हमने नीचे देखा लाइफ मेंबरशिप फीस या एंट्रेंस फीस या लेगसीज, ये सब पैसे से ही आपका कैपिटल फंड बनेगा. इसी को कहते हैं कैपिटल फंड लॉन्ग टर्म. जैसे पार्टनरशिप में ओनर पैसा डालते थे, पार्टनर पैसा डालते थे, यहाँ पे मेंबर पैसा डाल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और इन पैसों से आप एसेट्स खरीदोगे, जैसे इक्विपमेंट खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, ओके. आपका स्विमिंग पूल बना रहे हो आप, तो स्विमिंग पूल बनाओगे. So these are the various fixed assets of that organization. Is that clear? So these are the liabilities and assets for an NPO in the form of club or a gymkhana or a social society, recreational society. तो बेसिक क्राइटेरिया कैपिटल और रेवेन्यू का है यहाँ पे, ये बहुत ध्यान रखना है. कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म, ठीक है. नाउ हाउ, आंसर तो हमें पता है. आंसर में हमें क्या बनाने का है? 2 आइटम्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. बहुत सिंपल सी चीज है. क्वेश्चन कैसे दिया होगा, यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है एनपीओ वापस. अच्छा, पहले यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोल दो मुझे. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड? सर तो फिर इसमें वो बैड डेट्स और वो सब तो आएगा ही नहीं ना? नहीं आएगा ना, क्योंकि डेटर ही नहीं है, क्रेडिटर ही नहीं है, कुछ ट्रेडिंग है ही नहीं. तो बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ये सब आने का सवाल नहीं है. डिस्काउंट रिसीट नहीं आएगा. ऑलराइट, बोलो एनी अदर डाउट्स? डिस्काउंट रिसीव तो आ सकता है ना, एसेट कोई खरीद रहे तो उसमें, अभी इक्विपमेंट खरीद रहे तो उसमें डिस्काउंट मिला तो उसको थोड़ी डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, वो तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया. हाँ, दुकान में जाते हो, टीवी खरीदने जाते हो, 50,000 का टीवी है, तुमने बार्गेन किया, 40,000 में खरीदा, तो थोड़ी 10,000 रुपया डिस्काउंट रिसीव्ड बताओगे. डिस्काउंट रिसीव्ड कब होता है? जब आपने 40,000 का टीवी खरीदा और उसको 35,000 दे रहे हो, आप कम पैसा दे रहे हो पेमेंट के वक्त, दैट टाइम इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. पहले ही खरीदने के वक्त कुछ काट कूट के मिल गया तो वो तो ट्रेड डिस्काउंट जैसा हो गया, वो तो आपका वो कॉस्ट प्राइस ही हो गया ना, जो नेट पे आप खरीदते. सर स्कूल वाले में बैड डेट्स आ सकता है ना? स्कूल वाले में आ सकता है बैड डेट्स, पॉसिबल है, रेयर, बहुत रेयर चांस. कोई फीस वीस नहीं आई और ऐसा इशू हो गया तो बहुत रेयर, तो स्कूल वसूल करके ही रहता है. पहले ही ले लेते ना एडवांस में, तो एडमिशन या जो स्कूल में वो कैंटीन और वो सब रहता है उसका भी स्कूल कभी कभी प्राइवेट को दे देती है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल कैंटीन्स होते हैं, कभी कभी खुद मेंटेन करती है. वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा कि खुद मेंटेन करेगी ना, तो कैंटीन का जगह विल बी एन एसेट, बट कैंटीन का एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस विल बी एक्सपेंस, फूड इनकम विल बी इनकम. अगर वो प्राइवेट मैनेज कर रही है और स्कूल को तो उसका कुछ है ही नहीं. अच्छा, तो उसका जो प्राइवेट मैनेज कर रहा है, उसका जो पर मंथ उसको कमीशन या रेंट पे लिया रहेगा, वो रेंट स्कूल का इनकम हो जाएगा. रेवेन्यू रिसीट होगा ना, रेवेन्यू रिसीट हर महीने आता है ना, जो हर महीने हर साल आता है वो रेवेन्यू रिसीट. ऑडिट. अभी क्वेश्चन कैसे देंगे? अभी देखो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं. प्रैक्टिकली आपका क्वेश्चन भी पूरा अकाउंट्स मेंटेनेंस सेम होता है. ओके जैसे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो, देयर आर ओनली 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंड लेजर. फर्स्ट प्राइमरी बुक इज जर्नल, फ्रॉम देयर वी पोस्ट इट इनटू द लेजर. लेजर के हेल्प से भी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, याद है आपको, क्लोजिंग बैलेंस इसका लिस्ट लेके, एंड ट्रायल बैलेंस के हेल्प से और एडजस्टमेंट के हेल्प से भी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. तो प्रैक्टिकली एनपीओ और एनजीओस भी ऐसे ही बनाते हैं अपने अकाउंट्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट. ठीक है, पहले के टाइम पे या अभी भी काफी जो बुक अकाउंट ऐसे मेंटेन कर कंप्यूटराइज अकाउंट पे नहीं पहुंचे हैं, वो ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो आपको अभी थियोरी में है.
ओके उसको बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट वाला फॉर्मेट, उसको बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट वाला फॉर्मेट। माइंड यू प्रैक्टिकली नॉर्मल वे से ही अकाउंट्स बन जाते हैं मेजॉरिटी बिजनेस, मेजॉरिटी एनपीओ के, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल है, जैसे आपके नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स आप बनाते हो वैसे ही बनते हैं थियोरिटिकली। और थोड़े ऐसे हैं जो क्रूड लेवल पे बनाते हैं, उनके लिए वो लोग जो मेंटेन करते हैं वो आपको थियोरी में सीखना है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको थियोरी में आएंगे। अब ये थियोरिटिकल अजम्पशन क्या फॉलो करते हैं हम लोग, थियोरी में क्या फॉलो करते हैं हम लोग, ये सोचते हैं कि वो लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, ठीक है, ये थियोरिटिकल अजम्पशन है, वो लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो लोग बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वो लोग बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। व्हाट इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट, एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ समरी ऑफ कैश और बैंक अकाउंट। आपने कैश अकाउंट बनाया है इतने सारे प्रॉब्लम्स में, आपने बैंक अकाउंट बनाया है डिसोल्यूशन में, आपने 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक पढ़ा हुआ है, कैश बुक, पैसा आया पैसा गया, रिमेंबर कैश बुक एंड कैश एंड बैंक अकाउंट वेर वन एंड द सेम, सब्सिडरी बुक विथ लेजर अकाउंट इंक्लूडेड, राइट। वो ही चीज होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो मतलब समझना, रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे सब गुल हो जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। तो रिसीट मतलब पैसा आया, डेबिट, एंड पेमेंट मतलब पैसा गया, क्रेडिट। वाई समरी? क्योंकि कैश एंड बैंक अकाउंट तो हर महीने बैलेंस होता है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको पूरे साल का मिलता है, तो पूरे साल का रिसीट और पूरे साल का पेमेंट आपको दे देगा। मतलब ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको बोलना चाह रहे हैं कि भैया आपका एनपीओ है, एनपीओ में आपने खाली कैश और बैंक अकाउंट और दूसरे लेजर अकाउंट बनाए हुए, आपने बाकी कोई जर्नल, सब्सिडरी कुछ नहीं बनाया, आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, आपने खाली कैश और बैंक अकाउंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाया है, और बाकी सब लेजर अकाउंट्स बना के रेडी कर लिया, उसके बेसिस पे आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने का है। तो नॉर्मल क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के हेल्प से हम लोग बना देते फाइनल अकाउंट्स, लेकिन एनपीओ के क्वेश्चन में हमें रिसीट और पेमेंट एंड एडजस्टमेंट के हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट आपका ट्रायल बैलेंस विल बी रिप्लेस्ड विथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, अलग है दोनों, बहुत अलग है। ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखता था लेजर का, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है? समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट दिख रहा है। रिसीट एंड पेमेंट डिस्क्लोजेस द समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट, मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया इस साल में, इन द करंट ईयर। रोकड़ा किधर से आया, रोकड़ा किधर गया, रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा। ये रिसीट पेमेंट खाली रोकड़े पे फोकस करता है, पैसा आया पैसा गया। दिस इज योर कैश बैंक अकाउंट। Just think like this is your cash bank account, and whatever you show in cash bank account will be shown over here. To give you an example, suppose यही क्लब या जिम खाना का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्लब या जिम खाना में कैश बैंक अकाउंट इसने बना के रेडी करके दे दिया। तो रिसीट साइड, चलो ये पहला साल है, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ अ क्लब और अ जिम खाना सपोज। तो याद है आपको कैश बैंक अकाउंट शुरू कहां से होता था? कैश बैंक अकाउंट बैलेंस, ये कैश बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। मुझे बताओ अगर इसी साल क्लब या जिम खाना शुरू हो रहा है तो कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं इसको नील कर देता हूं, ठीक है। आप प्रैक्टिकली सोचो, एकदम प्रैक्टिकली मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कैसे बनेगा रिसीट पेमेंट ऑफ अ क्लब और अ जिम खाना। आपने क्लब और जिम खाना ओपनिंग कैश बैलेंस 0 था, अभी आपने क्लब फॉर्म किया, तो क्लब फॉर्म करने के लिए सबसे पहली चीज क्या लगेगी आपको? कैपिटल। कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, सॉरी, कहां से आएगा ये पैसा? फंड। कैपिटल फंड मेंबर से गवर्नमेंट आएगा, ग्रांट्स। राइट।
गवर्नमेंट ग्रांट से मेंबर से आएगा। तो आप पहले इकट्ठा करोगे सब मेंबर को, मीटिंग रखोगे और बोलोगे चलो सब मेंबर मेरे को एंट्रेंस फीस दे देना, सब लोग एंट्री की एंट्रेंस फीस दे देना। कितना दोगे एंट्रेंस फीस? समझो 50, मैं लमसम ले रहा हूँ, 50,000 रुपीज एंट्रेंस फीस दे देना मेरे को। सब मिलके बोल गए ठीक है 50,000 रुपया आ जाएगा एंट्रेंस। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, मेरे बुक में क्या एंट्री आएगी? पैसा आया कि गया? आया। आया। तो बैंक टू एंट्रेंस फीस या कैश टू एंट्रेंस फीस? तो यहां पे मैं एंट्री करूंगा कैश टू एंट्रेंस फीस, कैश टू एंट्रेंस फीस। ये मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली रिसीट पेमेंट कैसे बनता है, ठीक है। एंट्रेंस फीस आया, कितना आया? 50,000, ठीक है। सामने ये कैश आया, ये कैश में रिसीट साइड पे दिख रहा है, ये रिसीट साइड पे ये पैसा आया एंट्रेंस फीस, ठीक है। कैश अकाउंट में दिखेगा टू एंट्रेंस फीस, कैश में दिख रहा है टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस में दिखेगा बाय कैश। एंट्रेंस फीस अकाउंट में नहीं बता रहा हूं, कैश अकाउंट में बता रहा हूं। अब मैंने बोला कि किस किसी को लाइफ मेंबर बनना है तो वो लोग भी भर सकते हैं। तो उसमें से कुछ लोग आए, बोले हमें लाइफ मेंबरशिप चाहिए, हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस भी आपको देने को रेडी है। बोला आ जाओ, वेरी गुड। 1 लाख रुपया मुझे लाइफ मेंबरशिप फीस मिल गई। तो क्या एंट्री मारूंगा मैं? टू लाइफ मेंबरशिप फीस 1 लाख रुपीज। बैंक टू फीस, बैंक पैसा आया, फीस इज माई इनकम। आर यू ऑल विथ मी? मैं रोकड़ा दिखा रहा हूं, कैश अकाउंट में एंट्री दिखा रहा हूं। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये दिखेगा आपको, ये बनाना नहीं है। कि कैसे बनता है ये समझ में आ जाएगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा आपको, ऐसा है। तो एंट्रेंस फीस आ गई, लाइफ मेंबरशिप फीस आ गई, ये समझ में आया आपको यहां तक? ठीक है, पैसे आ गए। अब मैंने सोचा कि चलो इन पैसों से कुछ एसेट खरीद लेते हैं अपने मेंबर्स के लिए। तो मैंने जगह खरीदी, एक छोटी सी बिल्डिंग बना दी वहां पे 1 माले की, फॉर द पर्पज ऑफ क्लब हाउस बना दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? लैंड एंड बिल्डिंग मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश में आना चाहिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग। समझो मैंने ये लैंड एंड बिल्डिंग बना दी से 40,000 रुपीज की। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना दिया मैंने 40,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग बन गई 40 की, ठीक है। यहां तक फर्नीचर लेके आया, फर्नीचर टू कैश हो जाएगा। तो बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000 का मैंने अंदर फर्नीचर रेडी कर लिया, टेबल, चेयर, सोफा, ओके, जो भी मेरे को चाहिए बैठने के लिए या खेलने के लिए। अच्छा, इक्विपमेंट चाहिए, क्रिकेट इक्विपमेंट, टेनिस इक्विपमेंट, बैडमिंटन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स लेके आया मैं। तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विपमेंट टू कैश। आर यू ऑल विथ मी? यहां तक समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में बाय इक्विपमेंट, आई एम सिंपली मेकिंग अ कैश अकाउंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। 10,000 का मैं इक्विपमेंट लेके आया। कंफर्टेबल यहां तक? ठीक है, ऑल ऑफ यू? नाउ इक्विपमेंट भी आ गए, मेंबर का पैसा भी आ गया। अब मेंबर्स क्या करेंगे? सर्विस यूज करना चालू करेंगे। क्लब खोल दिया है मैंने, सर्विस यूज करना चालू करेंगे। लेकिन मैं बोलूंगा मेंबर्स रुको, अगर आपको सर्विस यूज करनी है तो उनके मेंटेनेंस का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। व्हाट इज दैट मेंटेनेंस का खर्चा कॉल्ड? मेंटेनेंस का जो मैं पैसा लूंगा मेंबर से हर महीने, हर साल, उसको क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन। अभी अभी देखा हमने। तो मैं हर एक मेंबर से 12 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले लूंगा। एंट्री क्या बनेगी? सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो माई इनकम। सो कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो यहां पे आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। समझो मैंने ले लिया 30,000 रुपीज, सभी मेंबर से मिला के महीने का 30,000 रुपीज है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन दे दिया, मैंने बोला चलो क्लब आपका है, खुला है, यूज करो जो आपको चाहिए, एम्यूनिटीज यूज करो। मेंबर्स ने यूज करने का चालू किया, मीटर खर्चे का चालू हो गया। क्या क्या मीटर खर्चे का चालू हो जाएगा? मेरे को सैलरी देने पड़ेगी स्टाफ को मेंटेनेंस के लिए, तो बाय सैलरी अकाउंट मैं सैलरी दे रहा हूं 20,000 रुपए की, समझो। यस, फिर मुझे मेंटेनेंस का खर्चा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर अगर यूज कर रहे हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा समझो मेरे को 4,000 वो देना पड़ा। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो जाएगा। एंट्री समझ में आ रही है? एक्सपेंस टू कैश कर रहा हूं मैं यहाँ पे।
कैश में बाय एक्सपेंस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कर रहा हूं मैं, लेट अस से 3000 वो हो गया। यहां तक समझ आ रहा है आपको? ये सब खर्चा हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, बस। और अंत में आपको मिलेगा बैलेंस। मैं देखूंगा कि भैया ये पूरा साल खत्म हो गया, अभी देखते हैं कुछ पैसा बचा कि नहीं, रोकड़ा है कि नहीं अपने पास। ऑब्वियसली आपके पास रोकड़ा होगा तो ही आप पे कर पाओगे। कभी कभी ओडी फैसिलिटी मिलता है इनको, मेजोरिटी ऑफ द केसेस अपने पैसे से ही काम चलाना पड़ता है, ठीक है। करंट अकाउंट बहुत रेयरली होता है इनका, मेजोरिटी सब दे रहा तुम्हारा सेविंग टाइप ऑफ अकाउंट, या करंट अकाउंट में भी ओडी फैसिलिटी ग्रांट नहीं होती है इनको, बिजनेसमैन नहीं है इसके लिए। तो आपका बैलेंस कितना बच रहा है अभी देखो, 1.5 लाख, और ये 1,80,000 था, 1,80,000, और एंड में कितना बचा, ये 60, 70, 90, 97 हो गया ये, तो 83,000 इज बाय बैलेंस सीडी। इतना कैश बचा है, ये आपको नेक्स्ट ईयर काम आएगा। ये स्ट्रक्चर यहां तक समझ आया रिसीट पेमेंट का। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय रिसीट एंड पेमेंट, दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सर ये जो आपने एसेट्स लिखे थे वो बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होंगे ना? यस ऑब्वियसली, अब मैं आ जाऊं उस पर ही आ रहा हूं मैं। आई एम मेकिंग द इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। पहले रिसीट पेमेंट समझा सबको, रोकड़ा, कैश आया, कैश आया रिसीट साइड, कैश गया पेमेंट साइड। कहीं से भी कैश आ रहा है, इनकम से आ रहा है, लॉन्ग टर्म से आ रहा है, कहीं से भी कैश आ रहा है रिसीट में, कहीं पे भी कैश जा रहा है पेमेंट में, रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा, कैश सिस्टम पे मेंटेन होता है वो। अभी ये आपका क्वेश्चन होगा, अभी इसके बेसिस पे हम लोग आंसर बनाते हैं। एक छोटू सा आंसर में आपको क्या बनाना है बताइए मुझे। आंसर में आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। ये आपका आंसर। अब आपको ये छोटा सा एग्जांपल अगर समझ आ गया तो आप बड़े सम्स में भी आराम से उसको टैकल कर सको। देखो, लेट अस स्टार्ट विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज लाइक माय ट्रेडिंग, ऑल इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड, ऑल एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड। एंट्री वाइज कैसे होगा देख लो। यहां पर देखो, पहले पेमेंट साइड में देखो, बाद में मैं इनकम साइड पे आता हूं। पेमेंट साइड देखो, सबसे पहला पेमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, किधर जाना चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग? एसेट। एसेट। इसका एंट्री से सोचोगे तो क्या हुआ था एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग में 2 कैश लिखा होगा। आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है तो लैंड एंड बिल्डिंग में यू हैव रिटर्न 2 कैश एंड बाय बैलेंस सीडी, एसेट है ना, तो बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी। तो ये दिखेगा आपको लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 40,000, ठीक है। मैं डेप्रिसिएशन इग्नोर कर रहा हूं अभी। फर्नीचर, वो भी कहां दिखेगा, एसेट। एसेट। लॉजिक सेम है, फर्नीचर में 2 कैश है, बाय बैलेंस सीडी है, तो फर्नीचर 20। इक्विपमेंट सेम लॉजिक, एसेट है, इक्विपमेंट में 2 कैश, बाय बैलेंस सीडी, तो इक्विपमेंट इज आल्सो एसेट। यही चीजें फाइनल अकाउंट में भी होती है, नॉर्मल फाइनल अकाउंट में, वो यहाँ पे हो रही है। सैलरी कहाँ दिखेगी बताइए, एक्सपेंडिचर। वाई एक्सपेंडिचर, हर साल आएगा इस हर साल पे करना है, आएगा नहीं पे करना है, पेमेंट पे हम लोग हर साल पे करनी है, एक्सपेंस है। तो इनकम एंड एक्सपेंस में ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो मैं लिख दूंगा टू सैलरी, कितना है 20,000। समझ आ रही है बात। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहाँ दिखाऊंगा, इनकम एक्सपेंस, हाँ इनकम एक्सपेंस में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। एंट्री कैसे बन रही है देखो, सैलरी में लिखा है 2 कैश लेकिन बाय बैलेंस नहीं आएगा ईशा, सैलरी में 2 कैश लेकिन बाय बैलेंस नहीं आएगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे नॉर्मल अकाउंट्स में इट इज बाय पीएनएल, हियर इट इज बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम अलग हो गया है, ट्रीटमेंट वही है। दिस इज 20,000, दिस इज 4,000, सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,000। अच्छा ये हो गया। अभी बैलेंस कैरीड डाउन, ये बैलेंस कहां जाएगा, व्हाट इज दिस बैलेंस, एसेट, कैश, एसेट। इतना बच गया ना कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, एसेट में जाएगा ना करंट ईयर का। बाकी सब एसेट तो ये रहे लिख दिए, कैश भी एक तरह का एसेट है ना, यस और नो, कैश एंड बैंक इज ऑल्सो एन एसेट। यस। शुरू में 0 था
फिर इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, तो एंड में कितना बचा? 83,000 बचा। तो आपका कैश एंड बैंक 83,000 दिखेगा इधर एसेट में। कमिंग टू द रिसीट साइड, ओपनिंग बैलेंस तो जीरो था। अब एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस, जरा दिमाग लगाओ और बताओ, ये एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस हर साल आने वाली है कि वन टाइम आने वाली है? वन टाइम। वन टाइम आने वाली थी। शुरू में मैंने वो कलेक्ट की, उसके बेसिस पे मैंने एसेट्स खरीदे। तो लॉजिकली सोच के बताओ, क्या ये एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस शुड आई शो देम अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट? लाइबिलिटी। Liability. In fact, this money is the contribution of capital. This money is the contribution. यही पैसा से कैपिटल बनेगा, ये कैपिटल की तरफ का आया हुआ पैसा है। तो मैं इसको दिखाऊंगा ऐसे, ये मेरा कैपिटल फंड था, शुरू में जीरो था, कैपिटल फंड वाज जीरो, फिर उसमें लाइफ मेंबरशिप फीस आया 1 लाख, फिर उसमें फीस आया 50,000, और अब मेरा कैपिटल फंड हो गया 1,50,000। फिलहाल 1,50,000 है। यही मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है मेंबर्स का, लॉन्ग टर्म वाला। समझ में आ रही है बात? देन सब्सक्रिप्शन, वेयर विल आई शो दिस सब्सक्रिप्शन? इनकम। ऑब्वियसली इनकम, क्योंकि हर साल आने वाला है। एंट्री क्या थी आपकी सब्सक्रिप्शन की? कैश टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में बाय कैश, सब्सक्रिप्शन में बाय कैश एंड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट है, बंद होके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन, जैसे उधर बाय सेल्स आता था, यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन, मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट? एंड दैट्स इट, आई हैव ट्रांसफर्ड एवरीथिंग। आई विल फाइंड आउट माय सरप्लस और डेफिसिट फॉर द ईयर। इस साल जरा देख के बताओ मैंने क्या किया, प्रॉफिट किया कि लॉस किया? प्रॉफिट। कैसे मिला प्रॉफिट लॉस? 30 माइनस 27, 3,000 का प्रॉफिट। क्या मैं प्रॉफिट लिखूंगा या सरप्लस लिखूंगा? सरप्लस। इसको कहते हैं सरप्लस। आपने इस साल 30,000 रुपए जमा किए मेंबर्स से, उसमें से 27,000 रुपए स्पेंड कर दिए, बचे 3,000, वो आपका हो गया सरप्लस, इनकम फॉर द ईयर। ये सरप्लस हम क्या करते हैं याद है? प्रॉफिट हम लोग क्या करते थे? कैपिटल में ऐड। कैपिटल में ऐड। तो ये सरप्लस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? कैपिटल फंड में ऐड। ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल 3,000 का सरप्लस किया, अब कैपिटल फंड कितना हो गया? 1,53,000, एंड आपका बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली सेल्फ टैली हो जाएगा ऑन 1,53,000। योर बैलेंस शीट विल सेल्फ टैली ऑन 1,53,000। दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज फ्रेम्ड। सर मतलब हम लोग लायबिलिटी में कुछ भी डालते हैं वो सब कैपिटल फंड में ही जाता है? नहीं, अलग से भी दिखता है। स्पेसिफाइड डोनेशंस की मैं करता हूँ, एंडोमेंट फंड्स बोलते हैं उसको। एकदम बेसिक एग्जांपल था ये। पहले ये समझ आ गया सबको? बोलो, इसमें किसी को कुछ नहीं समझा? एनी डाउट? आपका ये क्वेश्चन होगा, दिस विल बी योर क्वेश्चन। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ये क्वेश्चन होगा, और ये आपका आंसर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। फर्क क्या होगा? नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस होता है और एडजस्टमेंट्स होता है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की जगह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, एंड एडजस्टमेंट्स भी होगा। ये सब में मैंने एडजस्टमेंट नहीं लिया। ओके, एडजस्टमेंट सेम है, दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेप्री है, लेस फ्रॉम एसेट एक्सपेंडिचर। विल डू द एडजस्टमेंट्स आगे। बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया? यहाँ पे क्या किया मैंने बताओ? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल, रेवेन्यू। ओके, now 3 important points of distinction between receipt and payment and your actual answer, income and expenditure. Suno, receipt and payment is prepared on cash basis or accrual basis? receipt and payment account कैश बेसिस पे बनता है कि अक्रूवल सिस्टम पे बनता है? कैश। कैश और अक्रूवल में क्या फर्क है पता है आपको? कैश मतलब रोकड़ा आया, रोकड़ा गया। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट सिर्फ ये देखेगा कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया इन द करंट ईयर। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज मेड ऑन कैश बेसिस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज मेड ऑन कैश बेसिस अक्रूवल, लाइक योर ट्रेडिंग P&L। मतलब अगर कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो क्या करते हम लोग? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता
तो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, तो वो भी दिखाना पड़ता। अभी यहाँ पे मैंने कोई एडजस्टमेंट लिया नहीं है ये सब में, अगर होता तो समझो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता तो ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, कटिंग इट एट। इनकम रिसीवेबल होती है तो ऐड टू इनकम एंड एसेट, डेप्रिसिएशन होता तो पीएनएल डेबिट एंड लेस फ्रॉम एसेट, ये भी करना पड़ता, ये भी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट में। ये सब एडजस्टमेंट आपको रिसीट पेमेंट में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो तो रोकड़ा फॉलो कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी यहां पे आपने देखा, देख के बताओ, डज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स? नो। रिसीट में मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कुछ डिस्टिंक्शन है रिसीट पेमेंट अकाउंट में? नो। नो। रिसीट पेमेंट भेलपुरी है, सब पैसा साथ में दिखा रहा है। ये देखो लॉन्ग टर्म का भी साथ में है, शॉर्ट टर्म का भी साथ में है। ये लॉन्ग टर्म थे एंट्रेंस फीस, लाइव मेंबरशिप फीस, और ये शॉर्ट टर्म था अपना सब्सक्रिप्शन, लेकिन भाई ने सब कुछ साथ में दिखा दिया है ना। वैसे ही डज इट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नो। यहाँ पे ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स है ये दीज आर ऑल केपेक्स। केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म एसेट के लिए यूज किया गया पैसा, बट ये सब खर्चे हैं। सैलरी वगैरह तो नीचे एक्सपेंस दिख रहे हैं आपको, सैलरी वगैरह आर ऑल एक्सपेंसेस। सो ये रिपेयर्स है, ये सैलरी है, ओके, रिपेयर्स है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था, ये सब आपका एक्सपेंडिचर था, नॉर्मल रेवेन्यू। डज इट मेक एनी डिस्टिंक्शन? रिसीट पेमेंट नहीं करता, लेकिन आपको आंसर में करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म आइटम बैलेंस शीट में, शॉर्ट टर्म आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। ये दूसरी बात समझ में आ गई? क्या बोला? पहली बात, इनकम एंड कैश रिसीट एंड पेमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन अक्रूवल बेसिस, ओके। आउटस्टैंडिंग भी दिखाना पड़ेगा वहां पे। सर तो इधर जो सब्सक्रिप्शन है वो आपने वहां भी रिफ्लेक्ट किया है, तो दोनों में फर्क क्या है? अरे वो कैश अकाउंट है, डबल एंट्री करते हो ना आप, तो एंट्री क्या बनी सब्सक्रिप्शन जब आपने रिसीव किया? कैश टू सब्सक्रिप्शन हुआ ना, वो तो कैश अकाउंट है, लेजर। कैश में सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में बाय कैश। फिर सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा ना ईयर एंड पे, टू पीएनएल के जगह टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, ओके ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन, कैश भी बंद हो रहा है, बाय बैलेंस सीडी, वो बैलेंस शीट में जा रहा है। सर वो जो मतलब कभी ट्रिप्स और वो सब लेके जाते हैं वो लोग, तो उसमें क्या आएगा फिर? सर तो फिर वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा कि? इनकम एक्सपेंडिचर हर साल, ट्रिप हर साल ना। नाउ दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, डज इनकम एंड डज रिसीट एंड पेमेंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम? पहला क्या था, वो रोकड़ा बेसिस है या अक्रूवल बेसिस है। दूसरा क्या था, रिसीट एंड पेमेंट इज नॉट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। लॉन्ग टर्म आइटम भी इसमें, शॉर्ट टर्म भी इसमें दिख रहा है, ये भेलपुरी। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट इसमें अलग अलग कर देना है आपको, बाइफरकेट करना है। लॉन्ग टर्म आइटम्स इन बैलेंस शीट, शॉर्ट टर्म आइटम्स अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इज दैट क्लियर? हेलो सर इसमें ड्राइंग्स नहीं आता ना? ड्राइंग सोल प्रोप्राइटरी में आ सकता है, सिंगल पर्सन चैरिटी पे कर रहा है तो आ सकता है, लेस फ्रॉम कैपिटल, सेम थिंग। जनरली नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता। उसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो आने वाले सम्स में आपको देखने मिलेगा, between receipt and payment and income and expenditure and your balance sheet. What is that? Receipt and payment सिर्फ रोकड़ा देखता है, तो ये साल का रोकड़ा मिला वो भी रिकॉर्ड होगा, लास्ट ईयर का कोई पेंडिंग पैसा मिला वो भी रिकॉर्ड होगा, नेक्स्ट ईयर का कोई एडवांस पैसा मिला वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रिसीट पेमेंट देखेगा नहीं कि खाली ये साल का कौन सा पैसा आ रहा है, वो पैसा देखता है। लास्ट ईयर का मिले, ये साल का मिले, नेक्स्ट ईयर का मिले, या नेक्स्ट ईयर का पे किया हो, लास्ट ईयर का पे किया हो, कोई भी पैसा रिसीव या पे किया हो ना, वो दिख जाएगा आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर अगर बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is like your trading and P&L account. Income and expenditure account will show only current year's income and current year's expense.
उसमें कभी लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का आइटम दिखने वाला नहीं है. वंस अगेन, रिसीट एंड पेमेंट विल सी ओनली रोकड़ा. समझो लास्ट ईयर कोई मेंबर की फीस पेंडिंग थी, वो ये साल मिली, वो भी दिख जाएगा. नेक्स्ट ईयर का मेंबर कोई एडवांस में पैसा देके गया, वो भी दिख जाएगा. रिसीट पेमेंट में सब कुछ दिखेगा आपको, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर. आंसर लिखते वक्त आपको आइडेंटिफाई करना है करंट ईयर का इनकम क्या है, करंट ईयर का एक्सपेंस क्या है. इधर दिमाग चलाना जरूरी है. Income and expenditure will show only and only current year's items, current year's earned income and current year's incurred expenditure. That is the third and the most important point. Point number 1, रोकड़ा and accrual. Point number 2, long term short term यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे करना है अपने को अलग करके. And point number 3, receipt payment has all bhelpuri, last year, current year, next year items, whereas income and expenditure will only and only have current year's income and expense. Is that clear? तो बेसिकली रिसीट पेमेंट पूरा भेलपुरी रहेगा, अपने को उसको फिल्टर आउट करना है. सोच सोच के करना है, लॉजिकली सोच के करोगे बहुत इजी लगेगा. ठीक है, करेंगे हम लोग सम अभी एक फटाफट. सर अगर एडजस्टमेंट में कैश दिया रहता तो बाकी है, एडजस्टमेंट्स में कैश रिसीव तो क्या कैश रिसीव्ड एडजस्टमेंट में कौन सा बाकी है? नहीं, मतलब एडजस्टमेंट में दिया रहता कि कैश बाकी है कोई भी मेंबर का उसका. हाँ, तो रिसीवेबल हो गया ना, इनकम रिसीवेबल हो गया ना, वो तो एसेट में आएगा ना फिर. हाँ, इनकम रिसीवेबल करते हो ना फाइनल अकाउंट्स में, दो इफेक्ट, ऐड टू एसेट्स एंड पीएनएल क्रेडिट. इनकम में ऐड, यहाँ पे इनकम में ऐड, सॉरी, ऐड टू एसेट्स एंड इनकम में ऐड. गॉट इट? नाउ टेक द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 94. फर्स्ट प्रॉब्लम ले लो, पेज नंबर 94. सर हाँ, कैन आई लीव? मैं बाद में वीडियो देख लूं. या एसके सोमैया जाओ, बाकी लोग मार्क करो. पेज नंबर 94, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. आई एम जस्ट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, वी आर जस्ट मार्किंग इट डाउन. विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. डिस्कशन में ही 10-15 मिनट जाएगा. अभी तो टेक्स्ट बुक्स है सबके पास, उधर ही मार्क कर सकते हो. दिख रहा है आपको क्वेश्चन में रिसीट और पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखा सबको? ये आपका क्वेश्चन होगा. दिस इज लाइक योर ट्रायल बैलेंस. अच्छा, ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो. ट्रायल बैलेंस का एवरी आइटम हैड गॉट हाउ मेनी इफेक्ट्स? 1. Same way, receipt payment का every item will have how many effects? 1. Recorded item. And adjustments are what? Unrecorded items. याद है final accounts? Double entry. Unrecorded items. So every adjustment has got how many effects? 2. 2 effects. इधर भी नीचे जो adjustments दिए, they will have 2 effects. ठीक है? Now, सबसे पहला हमेशा पेमेंट साइड से शुरू करना है आपको. पेमेंट साइड से जाओ. सैलरीज, चार दो चीजें बनानी है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो सैलरीज कहाँ जाएंगी बताइए? इनकम एक्सपेंडिचर. इनकम, तो उधर लिखना ई फॉर एक्सपेंस, आई फॉर इनकम, ए फॉर एसेट, एल फॉर लायबिलिटी. तो एक्सपेंडिचर, सैलरी के बाजू में लिखो ई, सैलरी के बाजू में लिखो ई. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ई एक्सपेंडिचर. टेलीफोन, ई एक्सपेंडिचर. गार्डनिंग, ई एक्सपेंडिचर. क्रिकेट, ई एक्सपेंडिचर. ये सब आपका क्लब का खर्चा है, ये सब आपका क्लब का खर्चा है. इज दैट क्लियर? देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब Expenditure. इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेंडिचर. ई टेनिस, सॉरी टेनिस ये पूरा क्लब है, तो ये सब खर्चे हैं उसके. क्रिकेट एक्सपेंस, टेनिस एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंस. हर महीने जो भी खर्चा कर रहा है ना मेंटेनेंस वगैरह पे, ये उसका खर्चा है. सो टेनिस एक्सपेंस ही है वो, ई. बिलियर्ड्स अगेन एक्सपेंस, ई. ओके. देन बार एक्सपेंस इज आल्सो एक्सपेंस, कभी किधर बार भी होता है, दारू वारू का खर्चा, दैट इज आल्सो एक्सपेंस. ई. इन्वेस्टमेंट्स, Assets. ए. लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट्स, ए. अभी आपने देखा होगा रिसीट पेमेंट में कोई फर्क नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब साथ में पड़े हुए वहां पे. लोकल ट्रेन का डब्बा. सो लैंड एंड बिल्डिंग इज ए. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. नाउ कैन यू सी टूर्नामेंट फंड ऑन द रिसीट साइड? कैन यू सी टूर्नामेंट फंड ऑन द रिसीट साइड? यस. अभी ये फंड का लॉजिक समझो सब लोग. कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में फंड दिख जाए, फंड,
ठीक है। ये फंड का मतलब क्या होता है? ये फंड का मतलब होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हर साल टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, 10-15 साल में एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि चलो कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं मेंबर्स के लिए, तो उसने रेयर टाइम पे एक चीज ऑर्गेनाइज की, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है, जिसके लिए उसने एक स्पेसिफिक फंड बनाया। जैसे मैंने आपको बताया ना, बिल्डिंग के रेनोवेशन का फंड रहता है, उसके लिए आपको मेंटेनेंस का पैसा मंगवाते हैं और उससे वो लोग खर्चा करते हैं। वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट के लिए पैसे इकट्ठा किया है मेंबर से, जो आपको रिसीट साइड दिख रहा है 1000 रुपीज, और उस पैसे से उसने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और खर्चा कर दिया 1000 रुपीज। तो ये जो फंड बनाया ना, टूर्नामेंट फंड, ये इंडिकेटर है कि टूर्नामेंट हर साल नहीं होता है। अगर हर साल नहीं होता है तो क्या आप उसका फंड का पैसा इनकम में दिखा सकते हो कि नहीं? नहीं। नहीं। तो वो अगर हर साल नहीं होता तो वो चीजें रेयर आइटम्स है, उनको भी आप लायबिलिटी और एसेट साइड पे दिखा देने का। अभी लायबिलिटी में तो फंड दिखाओगे, ये फंड है ना, इनकम में नहीं दिखाना। जो रिसीट वाला फंड है ना, रिसीट वाला फंड है ना, उसको इनकम में मत दिखाना, उसको लायबिलिटी में दिखाना। यू शो दैट फंड अंडर लायबिलिटी, ओके। एंड दैट एक्सपेंस, उसको एक्सपेंस में नहीं दिखाने का है, लायबिलिटी वाले फंड में से ही माइनस कर देने का, क्योंकि जो फंड आया था उसी में से वो खर्चा गया है, वो फंड में से ही वो खर्चा स्पेंड किया है। लेकिन मैंने इसको इनकम एक्सपेंस में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये हर साल नहीं होने वाला है। हर साल नहीं होने से एक साल दिखाओगे ना तो आपका कंपैरिजन बाइफरकेट हो जाएगा, कंपैरिजन डिस्टॉर्ट हो जाएगा, आप हर साल कंपेयर नहीं कर पाओगे सरप्लस को। सर मतलब अगर सामने फंड दिया रहेगा कोई भी एक्सपेंस, हाँ, कोई भी फंड है, अगर यही मेरे को टूर्नामेंट फंड के जगह टूर्नामेंट रिसीट होता ना, तो चुपचाप मैं इनकम एक्सपेंस में डाल देता, टूर्नामेंट रिसीट अंडर इनकम, टूर्नामेंट एक्सपेंस अंडर एक्सपेंस। इसका मतलब वो टूर्नामेंट हर साल हो रहा है। टूर्नामेंट फंड की जगह होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो सकता है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड दिखा, फंड का मतलब वो चीज हर साल नहीं हो रही है, रेयर इनकम है। रेयर इनकम है, लायबिलिटी में दिखाओ, इनकम में मत दिखाओ, और उसी का खर्चा वहीं से माइनस कर दो। कैपिटल फंड नहीं, अलग से फंड, ये फंड अलग ही रहेंगे। इनको कहा जाता है एंडाउमेंट फंड, इनको कहा जाता है एंडाउमेंट फंड। थियरी में ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, फंड्स क्रिएटेड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस या डोनेशंस रिसीव्ड फॉर स्पेसिफाइड फंड्स आर कॉल्ड एंडाउमेंट फंड्स। एंडाउमेंट फंड का मतलब ये कभी कभी आती रहेंगी, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, क्रिकेट फंड, क्रिकेट एक्सपेंस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, गवर्नर्स पार्टी फंड, गवर्नर्स पार्टी एक्सपेंसेस, बार फंड, बार एक्सपेंस, कभी कोई बार की पार्टी कर दी। तो बहुत रेयर सिचुएशन में फंड क्रिएट होता है, उसका पैसा उसी चीज के लिए यूज होता है और कहीं नहीं। तो डोंट शो दैट फंड अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑलवेज शो इट अंडर लायबिलिटी, एंड जो भी एक्सपेंस है वहीं से माइनस। लेकिन आपको दे दिया बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड तो लायबिलिटी है, फंड है। अब वो पैसा किधर यूज करना है? बिल्डिंग बनाने में, तो बिल्डिंग एसेट में दिखाने का। आपको दिया है लाइब्रेरी फंड, तो लाइब्रेरी फंड इज लायबिलिटी, लाइब्रेरी बनाने के लिए, तो लाइब्रेरी इज योर एसेट, उसको माइनस मत करना है, एसेट को माइनस नहीं करना है। एक्सपेंस है तो माइनस करने का, वहां समझ में आ रही है बात? आपको दिया है स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल फंड इज लायबिलिटी, सामने स्विमिंग पूल इज योर एसेट। आर यू गेटिंग दैट? सो एसेट का फंड है तो एसेट माइनस नहीं करना है, एसेट को एसेट में दिखाना है, फंड को लायबिलिटी में दिखाना है। बट अगर एक्सपेंस रिलेटेड फंड है तो फंड इज ऑन द लायबिलिटी साइड एंड एक्सपेंस वहीं से माइनस। फंड का फंडा क्लियर? फंड दिखेगा तो कभी भी फंड इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। सर अगर इसमें फंड नहीं होता और सिर्फ टूर्नामेंट एक्सपेंस होता तो वो एक्सपेंस है, तो फिर एक्सपेंस। फंड नहीं होता तो भी है, अगर टूर्नामेंट रिसीट भी होता तो भी एक्सपेंस। टूर्नामेंट रिसीट इनकम, टूर्नामेंट एक्सपेंस एक्सपेंस। गॉट इट? फंड 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 फंड, ये फंड ही नाम अलग करता है इसको, फंड। तो फंड दिखा आपको तो फंड विल बी लायबिलिटी, दैट स्पेसिफाइड फंड विल बी लायबिलिटी, एंड एक्सपेंस वहीं से सबट्रैक्ट करके दिखा देना। इज दैट क्लियर? एसेट्स विल बी शोन सेपरेटली इन योर बैलेंस शीट लायबिलिटी। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि रिकरिंग नहीं है, आपका कंपैरिजन डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसके लिए।
Then furniture, where you will put furniture? Assets. Assets. Sports material, another important item, sports material. ठीक है, ये लफड़ा आएगा आपको मटेरियल के केस में. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया है, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स दिया है, तो एसेट्स है. स्पोर्ट्स मटेरियल या कोई भी मटेरियल है, बार मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रिकेट मटेरियल, ये मटेरियल का जो कंसेप्ट है ना, ये थियोरिटिकली आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. प्रैक्टिकली तो बहुत सिंपल है, हर साल हो रहा है, खर्चा बताओ, रेयरली हो रहा है, यूज कर रहे हो, डेप्रिशिएट कर रहे हो, एसेट बताओ. अभी ये स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, दोनों हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है. क्वेश्चन में पढ़ने का, डू यू हैव डेप्रिसिएशन या सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन? मुझे बताओ डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? Assets. एसेट्स. और सेल क्या कर सकते हो? एसेट्स. बेच भी एसेट ही सकते हो ना आप, एक्सपेंस को तो बेच नहीं सकते. तो स्पोर्ट्स मटेरियल या बार मटेरियल या क्रिकेट मटेरियल दिखे तो आंसर एडजस्टमेंट में चेक कर लेना कि कहीं कुछ डेप्रिसिएशन या सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि नहीं. अभी यहां पे अगर आप चेक करोगे तो आपको ना डेप्रिसिएशन ना सेल, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है आपको. आपको खाली इतना दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल वेर वैल्यूड एट 800. कैन यू सी दैट? स्पोर्ट्स मटेरियल वेर वैल्यूड एट 800. नीचे दिख रहा है एडजस्टमेंट में, ना डेप्रिसिएशन है ना सेल है. तो इन सच अ सिचुएशन यू हैव टू ट्रीट स्पोर्ट्स मटेरियल एज योर एक्सपेंस, एज योर एक्सपेंस. सर वो पर 800 है मतलब डेप्रिसिएशन ही हुआ ना? नहीं 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 नहीं, वो वैल्यूड का मतलब दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक. जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी किया था ना हमने, क्लोजिंग स्टॉक, लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट्स, बचा हुआ, वैसे ये लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड एसेट्स. ओके, सो वैल्यूड वैल्यूड देके कंफ्यूज मत होना, स्टॉक देके कंफ्यूज मत. दो आइटम पे फोकस करना, दो आइटम. कौन सा? डेप्रिसिएशन एंड सेल. डेप्रिसिएशन एंड सेल अगर ये दिया है तो ही एसेट, अदरवाइज एक्सपेंस. अदरवाइज ये थियोरी के लिए, प्रैक्टिकली तो आपको पता होगा, हर साल वापर रहे हो तो एक्सपेंस, अगर रेयरली हो रहा है यूज करके डेप्रिशिएट कर रहे हो तो एसेट. सर तो अभी एक्सपेंस है ना? अभी एक्सपेंस. इन दिस सम स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी योर एक्सपेंडिचर. करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैश इन हैंड. व्हाट इज दैट करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैश इन हैंड? Assets. एसेट्स. करंट ईयर का क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये दिख रहा है हमारे क्वेश्चन का 83,000, ये यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है. समझ में आ रहा है? टू द रिसीट साइड, सब्सक्रिप्शन. आंख बंद करके किसी को भी पूछा जाए एनपीओ में सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? इनकम. इनकम. ऑलवेज योर इनकम, रिकरिंग इनकम, हर साल मिलने वाली है, रेवेन्यू रिसीट है. बात समझ में आई? सब्सक्रिप्शन, आंख बंद करके इनकम, आई लिख देना, आई. बार रिसीट्स, Income. इनकम. जैसे बार एक्सपेंस है ना, वो बार रिसीट, बार के लिए अलग चार्ज होता है. स्पोर्ट्स, कभी कभी कोई क्लब ऐसा करता है, सब्सक्रिप्शन तो लेगा ही, मेंटेनेंस का खर्चा, फिर आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी यूज करनी है ना, उसका भी पैसा लेगा आपसे. बार यूज करना है, बार का पैसा भरो. क्रिकेट रूम यूज करना है, उसका पैसा भरो. कार्ड रूम यूज करना है, उसका भरो. कैरम यूज करना है, उसका भरो. स्पेसिफिक जो जिसको यूज करना है वो कर सकेगा. ओके, तो ये सब भी उसकी अमाउंट ऑफ रिसीट है, वो इनकम है. बार रिसीट इनकम. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम. इनकम, आई. क्रिकेट फीस, इनकम. इनकम. टेनिस फीस, इनकम. इनकम. बिलियर्ड फीस, इनकम. इनकम. अभी यहां तक का लॉजिक समझा? ये सब फीस है आपकी, एमिनिटीज यूज करने की फीस, एमिनिटीज के एक्सपेंस, एमिनिटीज की फीस. अब लाइफ मेंबरशिप फीस, Liability. लाइबिलिटी. कुछ नहीं दिया होता तो मैं चुपचाप कैपिटल फंड में ऐड कर देता, लेकिन 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 देयर इज अ कैच. व्हाट इज अ कैच? यू रीड द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट पढ़ो नीचे से, कुछ फोर्थ वाला है. डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस वेयर टू बी कैपिटलाइज्ड. कैन यू सी दैट? डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस वेयर टू बी कैपिटलाइज्ड. कैपिटलाइज का मतलब कैपिटल fund. लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड में ऐड कर देने का. इज दैट क्लियर? टर्म कैपिटल फंड में ऐड कर देने का. ठीक है, कभी कभी ये रेवेन्यू में भी जा सकता है. क्यों जाता है वो भी मैं बताता हूँ. अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, रिसीट पेमेंट में सबसे पहला आइटम तो ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए. कैन यू सी एनी ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस No. बीडी? No. नो. व्हाट डज दैट इंडिकेट? फर्स्ट ईयर. First year है. फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अपने एग्जांपल के जैसा, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नो ओपनिंग बैलेंस. अच्छा,
लाइफ मेंबरशिप फीस क्या करना है, इनकम में लिखना है कि कैपिटल फंड में ऐड करना है? कैपिटल फंड में ऐड करना है। डोनेशन के बारे में भी पढ़ो, क्या दिया है, डोनेशंस वेयर टू बी कैपिटलाइज्ड। असं कसं, अभी अभी हमने देखा डोनेशन क्या था, इनकम था। ऊपर बताया ना मैंने, ये 3 आइटम्स इनकम में डालने हैं, लेकिन नीचे क्या दिया है, डोनेशंस वेयर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो ये सब में वो लोग बोल रहे हैं कि जो डोनेशन है वो हर साल नहीं मिलने वाले आपको। ये डोनेशन खाली एंट्री पे मेंबर भर देगा अपने विल से, बस खत्म, उसके बाद कोई डोनेशन नहीं आएगा। तो डोनेशन क्वेश्चन में दिया तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन में दिया है कैपिटलाइज करना है, ऐड टू कैपिटल फंड। क्वेश्चन में दिया है इनकम में डालना है, इनकम में डाल दो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब अपना ब्रेन यूज करके ये लिखना है, ये अजम्पशन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट देन यू राइट योर 3 आइटम्स, डोनेशंस, ग्रांट्स एंड सब्सक्रिप्शंस अंडर इनकम एंड बाकी अंडर कैपिटल फंड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतना इनकम इतना कैपिटल फंड, तो डिवाइड करो, पूरा इनकम तो पूरा इनकम, पूरा कैपिटल फंड तो पूरा कैपिटल फंड। जैसे कि यहाँ पर डोनेशन के बारे में क्या दिया है, आर यू सपोज टू पुट इट अंडर इनकम और कैपिटलाइज? रीड नीचे से पॉइंट नंबर 4, कैपिटल फंड। इसका अर्थ समझ में आया? क्या ये डोनेशन हर साल मिलेगा आपको? सर ऐड टू कैपिटल आएगा ना? हाँ, ये ऐड टू कैपिटल फंड आएगा, क्योंकि ये डोनेशन हर साल नहीं मिलने वाला। दिस डोनेशन यू आर नॉट सपोज टू गेट एवरी ईयर, ओके? नॉन रिकरिंग रिसीट है। एंट्रेंस फीस के बारे में भी पढ़ो, कुछ दिया है। एंट्रेंस फीस, half of the entrance fees received were to be capitalized. Can you see that? Half of the entrance fees were to be received were to be capitalized. मतलब क्या इसका, पूरा का पूरा 3000 कैपिटल फंड में लिखना है क्या? नहीं। हाफ, तो बाकी हाफ किधर? इनकम, बाकी हाफ इनकम। इसका लॉजिक समझ में आया? ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बोल रहा है कि आधी एंट्रेंस फीस अभी भरो, आधी डिवाइड करके भरना थोड़ा थोड़ा करके हर साल भरो, ऐसा। या मे बी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हर साल एंट्रेंस फीस रिसीव की जा रही है, हर साल नए नए मेंबर जुड़ते जा रहे हैं, तो पूरा पैसा कैपिटलाइज नहीं करना है। कैपिटल फंड में डालो, आधा इनकम में डालो, रिकरिंग है वो, आधा रिकरिंग है, आधा नॉन रिकरिंग है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया तो वैसे फॉलो करना। लेकिन मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन वाज साइलेंट अबाउट एंट्रेंस फीस, देन व्हाट यू माइट हैव डन? capitalized. If the question was silent on donation, what you might have done? Income, donation, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, donation, income, okay, donation, grant, subscription, income. If the question was silent on life membership fees, what you might have done? Liability, capital fund. If the question is silent on entrance fees, what you might have done? Liability, capital fund. Is that clear? दिया है तो ब्रेकअप करके लिख देने का, जो दिया है वैसे। तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस हाफ कैपिटल फंड में ऐड होगा और हाफ इनकम में जाएगा। टूर्नामेंट फंड, बताइए। लायबिलिटी, विल यू ऐड इट टू कैपिटल फंड? नो। शो इट सेपरेटली। व्हाई शो इट सेपरेटली? क्योंकि कैपिटल फंड का जो पर्पस होता है ना, वो जनरल होता है, उसका पैसा आप किधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूर्नामेंट फंड का जो पैसा है उसका पर्पस स्पेसिफिक है। फंड का, टूर्नामेंट फंड का पैसा खाली टूर्नामेंट एक्टिविटीज के लिए होगा और कहीं नहीं होगा, इसलिए वो फंड को अलग से दिखाओ, तो आपको पता चले इतना पैसा ये इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है? तो टूर्नामेंट फंड अलग, कैपिटल फंड अलग। कमिंग टू द एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स आर वेरी वेरी सिंपल, जस्ट लाइक योर फाइनल अकाउंट्स, ओके? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द, मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम की एक्सपेंस? इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीवेबल का 2 इफेक्ट्स क्या होता है फाइनल अकाउंट्स में? क्या? एसेट एंड इनकम। एसेट एंड ऐड टू इनकम। सो ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट लिख दो उधर, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स। सब्सक्रिप्शंस ऑफ 100 रुपीज वर रिसीव्ड इन एडवांस। देखो, रिसीव्ड इन एडवांस म्हणजे व्हाट? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का 2 इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स, liability minus from income, less from income, सब्सक्रिप्शन में से लेस एंड लायबिलिटी। अभी किसी को डाउट आता है, सर ये रिसीवेबल भी और रिसीव्ड इन एडवांस भी दोनों कैसा होगा? हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों हो सकता है? किसी का रिसीवेबल हो सकता है, किसी का रिसीव्ड इन एडवांस। मेंबर्स है तो किसी का रिसीव्ड इन एडवांस हो सकता है, किसी का रिसीवेबल हो सकता है, ओके? यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल होंगी। देन
Salaries unpaid for 2007 amounted to unpaid म्हणजे Outstanding. Outstanding. outstanding मतलब देना बाकी है. So what are the two effects? Liability add to salary. Liability and add to salary. Add to salary and liability. All of you got that? Add to salary and liability. लिख दो सब लोग add to salary and liability. Insurance prepaid to the extent of 50. Prepaid म्हणजे Assets Prepaid minus expense. from insurance. minus from insurance and assets. Got it? Doesn't belong to this here. And assets. All of you comfortable with the first four adjustments? Any doubts? Perfect. Half of the entrance fees received was to be capitalized. This was not an adjustment. हर एक चीज जो नीचे दिखा आंख बंद करके इफेक्ट नहीं दे देने का. नीचे वाला आइटम वो एडजस्टमेंट नहीं, वो ब्रेकअप है. बोल रहा है कि एंट्रेंस फीस तुम्हारा क्या करना है, आधा कैपिटल फंड और आधा इनकम. गॉट इट? वो हमने देख लिया है ब्रेकअप. देन डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस वर टू बी कैपिटलाइज. वो भी इंफॉर्मेशन है, देख लिया हमने. कैपिटल फंड में ऐड करना है. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव म्हणजे Receivable. Asset. इनकम रिसीवेबल का दो इफेक्ट. Add to income, add to asset. Add to income, add to asset, add to interest, add to asset. Sports material were valued at 800. Valued म्हणजे stock. Valued म्हणजे stock. Stock of stationery का stock of stationery. What are the two effects of stock of stationery? Assets. asset or Asset. Asset Subtract and from stock. subtract from stock. Subtract from sports. Sports material. इतना बच गया. Prepaid expense है वो. So less from sports material and assets. Less from sports material and assets. Depreciate furniture and land and building by 2.5 and 5%. Depreciation. What are the two? Expense minus from assets. Less from assets and expenditure. Less from assets and expenditure. All of you clear with the adjustments? Yes. Any adjustment? Anyone? Any doubt? No. Mrinmay, Prem Jain. All of you comfortable? डॉट्स और नंबरिंग देना है जो हम फाइनल अकाउंट्स में देते थे, याद है? डॉट्स और नंबरिंग. सब्सक्रिप्शन के बाजू में दो डॉट्स, 2 डॉट्स अगेंस्ट सब्सक्रिप्शंस. सब्सक्रिप्शन पे दो एडजस्टमेंट है, पुट 2 डॉट्स अगेंस्ट सब्सक्रिप्शंस. सैलरीज 1 डॉट, पेमेंट साइड फर्स्ट आइटम, सैलरीज 1 डॉट. इंश्योरेंस 1 डॉट, पेमेंट साइड सिक्स्थ आइटम, इंश्योरेंस 1 डॉट. एंट्रेंस फीस 1 डॉट, लाइफ मेंबरशिप फीस 1 डॉट, डोनेशन 1 डॉट. इंफॉर्मेशन है, ब्रेकअप है, देखना पड़ेगा. Life membership fees, donations, entrance fees, 1 dot. Interest due but not received. Interest पे 1 dot. Interest on securities, third item on the receipt side, 1 dot. Sports material, 1 dot. Material, third last item, payment side, 1 dot. Sports material, 1 dot. And furniture and building, 1 dot each for depreciation. Furniture and building, 1 dot each for depreciation. Once again, I'll repeat the dots. Subscription, 2 dots. Salaries 1, insurance 1, entrance fees 1, donations 1. Life membership fees 1, interest 1, sports material 1, furniture 1, building 1. All of you comfortable? Is this a continuing year or a first year of the organization? first year. First year. कैसे पता चला first year? No balance. Balance नहीं है. कैश बैंक बैलेंस है क्या? नहीं है. ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो पहला साल हो गया ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर पे बनाएंगे. रिवाइज करना मेहरबानी करके, आज का वीडियो लिंक वापस देखना और ये थियोरी वाला एग्जांपल देखना और ये क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेना पहले जो हमने डिस्कस किया है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर ताबड़तोड़. आई स्टार्ट विद द सम. कुछ डाउट्स है तो सॉर्ट इट आउट विद इन दीस 2 days. और कोई रिटर्न होमवर्क नहीं है, खाली पढ़ना है. इज्जत से पढ़ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, डाउट्स है तो मैसेज करना, अदरवाइज विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. यू कैन. Bye, sir. Bye.